good. So I was Okay. how many Yeah. people. How does it feel? It feels surprising and good at the same time. Okay. All right. So I think this 9 o'clock thing slightly so it's a tradition that we've started for the in the last 3-4 weeks, wherein we've done a lot of extended sessions, a lot of revision sessions. So today's session from a DILR standpoint is going to be a very, very amazing session. Let me quickly take you through the key pointers. Wherein we'll talk a little bit about what is it going to be, and then we'll kickstart for the session. Very, very excited, as all of us are, about this session, because it's going to have some really, really amazing aspects. Let me show you. Let me So if I talk about some of the key discussion pointers, so if I talk about some of the key discussion pointers, we'll briefly touch upon some of the key pointers and road ahead. And then these are some of the key varieties that we plan to cover. So if we talk about some of the varieties like routes and networks, games and tournaments, arrangements, bar charts, Venn diagram, which is set theory, and then binary logic, scheduling, selection, some miscellaneous, and DILR booster is going to follow this. We had to share a DILR booster, which we had held back because of this session. So primarily to basically conclude this session and then share it, so that people can get a lot of practice, and the approaches that they learn from here can get executed in that DILR booster. So DILR booster will be shared after the session, wherein we can start applying things there. And effectively, the key varieties is what we are going to cover here. Now, if I talk about some of the key DILR strategy. Okay. Now, if I talk about key DILR strategy, Devanshi, I'd request if you could switch your camera off. I It feels like I have a lot of fans. Just kidding. Now let me talk about the some of the key pointers. Okay. So if I have to talk about DILR strategy, Himanshu, let me take your inputs first. What do you believe are some of the key pointers, very, very briefly, and how do you believe that one should take it on from here? Yeah, so in the classes also we have discussed this many a times, and what I feel in DILR is practice is very important, right? And practicing variety is at least very relevant when it comes to DILR. The more number of practice, the more number of sets within the same topic, if you have solved, so it will make you comfortable during the test, during any exam, right? Because you have seen such kind of questions. So variety is very important, and that is why we are trying to cover a number of questions in today's class. And then again, apart from this, I believe comprehension is very important again when it comes to DILR, because until unless you don't understand what the question is, what the set is, it is very difficult to solve even an easy question as well. So variety, comprehension, practice, I think these are some of the keys, and also being present in the moment so that you are not thinking about VRC while you are solving DILR is very important, because then you will be missing out on some of the information which will lead you to spend out more time during that test. So I think these are some of the top key pointers in my opinion. But apart from that, there are so many more. But these are some of the things that comes to my mind right now. Absolutely. So I think I would say pretty much bang on. I also had these pointers in mind. And I think you've talked about variety. In terms of comprehension, I will, in terms of comprehension, I believe, comprehension comes from the structure that we use, or the approach that we follow. How clean is that approach is something which really matters as far as complex DILR problems are concerned. So if we are able to, आई एम श्योर सब लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है वो नीट एंड क्लीन नहीं बनता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एट टाइम्स it really gets cluttered, and then when we start finding solutions, कई बार फॉर एग्जांपल पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीसरा क्वेश्चन फिर से पहले वाले के ऊपर बेस्ड है, तो वो हमारा सोल्यूशन ही क्लीन नहीं बन पाता है. तो
that really sort of kills comprehension. And I believe that structure therefore is very important. How do you make it absolutely clean is also something that we should start focusing on. Maybe initially it takes a minute more, but it is worth it, and I am willing to invest that time. If it takes a slightly a minute more, a minute and a half more, at this point in time, let's invest that time, but make sure that whatever we are doing is slightly cleaner and structured. So that is the second point that I would want to add. Practice, as Himanshu said, to add to that, I will say that start practicing along these lines also. So for example, मैंने रूट्स एंड नेटवर्क्स की वैरायटीज देखी है, मैंने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स की ये वैरायटीज देखी हैं, अरेंजमेंट्स के मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, सर्कुलर भी आता है, लीनियर भी आता है. Being present in the moment is very very important, especially because ये बहुत बहुत रेलिवेंट पॉइंटर है, क्योंकि DILR तेरा VARC के बाद आता है, और VARC का हैंगओवर अगर DILR को इम्पैक्ट कर देगा. DILR is clearly the toughest of all three. I'm sure you will all agree, right? And this is across the board, engineer, non-engineer, कोई भी हो, across the board. It's the difficult topic. So a VARC impacting a DILR is the last thing that you would want on the exam. So I think that's something which is there. Souvik is saying VRC is tougher. Souvik, that there are individual elements. There are people who might say that interviews are tougher, or GK is tough. But the idea is if we see that in a average environment, or in a larger set of data, then DILR comes out to be the difficult one. Okay. DILR में भी स्कोर्स कम होते हैं. स्कोर्स देखो, अगर आपको स्कोर देखोगे तो पता चलेगा. ठीक है, तो चलो, we'll also be doing a few VARC sessions in the coming weeks, which are going to be these extended sessions. So for now, let's focus on DILR. आज हम DILR में हैं, DILR अच्छे से सीखते हैं, and then we'll sort of do a few questions also. शुरू करते हैं. Let's begin. Manshu, over to you. Let's begin. We'll see a few questions, and I'll also be around. I'll also keep coming in for a few interesting varieties that I have to do. इसमें से कुछ interesting वाले varieties मैं करूँगा. Some Himanshu will do it. So Himanshu, over to you. Let's begin, and let's start. Guys, one request to all of you is when you start solving questions, try and structure it in a small amount of time. We may not give you a lot of time in every question, and therefore keeping fresh is important. तो थोड़ा सा टाइम में आप कितना बेटर स्ट्रक्चर कर सकते हो, क्वेश्चन को समझ सकते हो, वो एक बार करना. We'll allocate some time in every question, and then start solving it. All right. I hope that helps. Himanshu, over to you. Okay, sure. So if you can just move to the next slides. I don't have that access. Just a second. I'll share the access with you. Just give me 2 minutes, guys. Just give me 2 minutes. All right. So I hope my screen is visible to everyone. Just type yes or no in the chat so that I can see. Is my screen visible, guys? Yes. Okay. Awesome. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं with roots and networks. ठीक है. Yesterday also we discussed a few sets on roots and networks only, and that's why I have tried
to keep it short today. Okay, so we'll be discussing one set on roots and network, then quickly we'll move to the other type of sets. Okay, so start करते हैं कल जहाँ पे हमने leave किया था वहीं से start करते हैं. ठीक है. So let's begin with roots and networks. And as Sudhanshu sir was discussing, we will not be able to give you a lot of time to solve this, but obviously once we reveal the question, we will also request you all to go through that question, and then maybe we can understand what approach you guys are going to follow. ठीक है. So I think हर question में हम लोग कुछ 5 minute types रख सकते हैं, so that you can at least go through the question and then basically understand what exactly the set is saying, how do you guys approach it, and उसके बाद we can start the discussion. So this is the first set for today, guys. First set for today. So just take 2-3 minutes to read this question, and then let's just see as to how you guys feel. What do you guys feel about? And also tell me in the chat if you feel that this is an easy question, moderate question, or a difficult kind of a question, and whether you should be attending or solving this kind of a question in a CAT scenario. Okay. So I mean, it's up to you guys now. Just go through the question once. Doable. Aman says doable. What about the rest? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? What do you guys feel about this set? Seems okay. Doable. Okay. Awesome. So I think this is nice that so many people are confident with this. ठीक है. So I think obviously you have to see the rest of the question, but once the set is done, right, once you have understood as to how many what is the number of files flowing through this route, right, so then it is very easy for you to answer the questions, right? Once you have determined as to what is the number of files moving from one person to the next person, so once that is done, I think the questions are just for formality by that. अच्छा, Rishabh saying कि first वाले का CBD है क्या? I don't know, brother. Let's just see. Let's just move. So should we start solving this set, and then maybe we can move to the next one? Okay. ठीक है, चलो start करते हैं. Awesome. तो आज हम लोग start कर रहे हैं roots and networks. Just a minute. All right. So, as per the set, it says that the following network shows how the files can be passed in an office. All the files start from analyst's desk, and any other person keep the files which are of use to him and pass on the remaining files in the direction zone. The last person will receive only those files which are of use to him. So last person is basically the client. Starts from analyst, goes to consultant, senior consultant, manager, and finally to the client. Okay. The following information is also known. So some additional information is given. The number of files that are passed from one person to any other person is not more than 5 and not less than 1. So 1, 2, 3, 4, 5. So these are our 5 options for these files, right? The total number of files that are of use to the client is 6. So client के पास finally 6 files रह जाएंगे, correct? 6 files. The total number of files that are of use to senior consultant यहाँ पे है. The number of files that are of use to him is
4. Okay. So one thing to note here is 4 means it's not like that only 4 files are coming to the senior client, senior consultant. It is 4 files at the end will be left with senior consultant. So let's say if 5 files are coming, he will be keeping 4 and passing out one file to the next person. Okay. Further, it says that 4 and the number of files that are of use to any person is at least 1. तो सारे में at least 1 तो होना ही होना है. Correct. So at least 1 हर जगह होना है. That could be 1, 2, 3, 4, anything, but minimum is 1. Also, let's read information number D, which says for any person, the number of files sent to or received from any other person is not the same as the number of files sent to or received from any other person. Okay, so that means, so for example, let's say if there is 2 files which is coming from analyst to consultant, it cannot be that 2 files is sending again to the senior consultant or the client. So these 2 numbers cannot remain the same. Sent to and received from cannot be the same. Okay, I hope this is clear now. I hope this is clear. All the numbers are unique. Okay, and he has to keep 1 as well. Yes. So let's say if there is 5 files coming, so this has to be 1 minimum. This has to be minimum 1. He has to keep at least 1 file for himself and then pass on the remaining file to the next. Okay, I hope यहाँ तक सबको clear है. I hope this is clear till now. Is the question clear, guys? Question में कोई doubt है? Any doubts in the question? No? Very good. चलो तो फिर जल्दी से अब हम लोग क्वेश्चन हो गया है तो एक बार जल्दी से अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, सॉल्व करते हैं. 4th point का last line. Okay, हाँ. So it says that analyst desk is the source to the other person. So this condition may not. So this condition is not valid to analyst desk क्योंकि यहाँ पे receive कोई हो नहीं रहा है. ठीक है. And here it could be the case that यहाँ पे भी 2 फाइल जा रहा है, यहाँ पे भी 2 फाइल जा रहा है और इधर पे भी 2 फाइल जा रहा है. So this condition is not applicable for analyst. Right? Not applicable for analyst. रिवर्स में नहीं जाएगा. जो एरो का डायरेक्शन है उसमें ही फाइल फ्लो कर रहा है, रिवर्स में नहीं जा सकता. एरो का डायरेक्शन जो बना हुआ है इट हैज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन. ओके, रिवर्स में नहीं जा रहा है. ठीक है. तो अभी देखते हैं. सो हियर इफ यू सी, नहीं दैट वी डोंट नो कि एनालिस्ट के पास क्वेश्चन फाइल बचेगा कि नहीं बचेगा. दिस इज द सोर्स. ठीक है. तो कितने फाइल ये जनरेट कर रहा है, कितना रिसर्च कर रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट नोन. सो वी कांट से कि ये कितना फाइल अपने पास रख रहा है, कितना पास ऑन कर रहा है, दैट विल हैव टू फाइंड आउट. बट कितने फाइल ये खुद के पास रखा है दैट विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट. ठीक है. सो वी शुड नॉट बी एबल टू फोकस ऑन दैट. Okay, so let's begin our discussion on this question. So here, if you see, as per statement number 1, it says that at least 1 file to सबके पास आना ही आना है, and every person has to keep 1 file for himself, right? So यहाँ पे 6 है, and everything is going to be unique, right? So client is getting files from consultant also, senior consultant also, manager as well, right? And the sum is 6, and all 3 numbers are unique. That means 1, 2, and 3. That means 1, 2, and 3. This will give us a sum of 6, and these 3 are unique. Correct? There is no other possibility. तो यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है. That we don't know for now. But that when at least हम लोग को ये पता चल गया है तो ये 3 एरो में at least 1, 2, 3 कहीं कहीं पे है. करेक्ट? ठीक है. अभी देखते हैं कंसल्टेंट का केस देखते हैं. कंसल्टेंट जो है, लेट्स से कंसल्टेंट इज गेटिंग 5 फाइल्स फ्रॉम हियर. ठीक है, 5 फाइल्स फ्रॉम हियर. तो मैक्सिमम वो कितना सीनियर कंसल्टेंट को भेज सकता है? हाउ मेनी फाइल्स ही कैन सेंड आउट टू सीनियर कंसल्टेंट? व्हाट इज द मैक्सिमम? 2, 4, 3, 4. अच्छा 5 नहीं,
तो गाइस आई थिंक लेट्स जस्ट डिस्कस दिस, ठीक है। देखो, एक फाइल तो एनीवे कंसल्टेंट इज गोइंग टू कीप इट फॉर हिमसेल्फ, राइट? वन फाइल इज द मिनिमम दैट कंसल्टेंट इज गोइंग टू कीप, राइट? And one file he has to pass on to the client as well, because there is a route, right? तो एक वो खुद के पास रखेगा, एक पास ऑन करेगा क्लाइंट को. दैट मीन्स अ मैक्सिमम ऑफ 3 फाइल्स कैन बी सेंड टू द सीनियर कंसल्टेंट. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये क्लियर है क्या सबको? 5 अगर फाइल आ रहे हैं तो मैक्सिमम ही कैन सेंड 3 फाइल्स टू सीनियर कंसल्टेंट. मैक्सिमम ही कैन सेंड 3 फाइल्स टू सीनियर कंसल्टेंट. यस, ओके, ओके. Now, for senior consultant to have 4 files, how many files he must be receiving? He must be receiving 7 files, because 3 from here and 4 from here, right? And then he can keep 4 files, right? Why 7? Why not 6? Why not 6? See, again, senior consultant also has to pass on some files to client as well as manager, right? Pass on some files to client as well as manager, ठीक है? तो मिनिमम दोनों जगह पे एक एक फाइल नहीं भेज सकता है. दोनों जगह पे एक एक फाइल नहीं भेज सकता है. या तो यहाँ एक भेजेगा, यहाँ 2 भेजेगा, या फिर यहाँ 2 भेजेगा, यहाँ एक भेजेगा. तो मिनिमम ही हैज टू पास ऑन 3 फाइल्स, राइट? मिनिमम ही हैज टू पास ऑन 3 फाइल्स collectively to manager as well as the client. तो इसका मतलब ये है कि 3 फाइल्स को मिनिमम भेजना है, 4 उसको रखना है. तो दैट मीन्स मिनिमम ही हैज टू टेक 7 फाइल्स फ्रॉम कंसल्टेंट एज वेल एज एनालिस्ट. यस, ठीक है. तो करेक्ट, करेक्ट. क्लाइंट इज गेटिंग 3 फाइल्स. Tanishka is saying client is getting 3 from someone, so how can consultant send 3? Consultant is sending 3 to senior consultant, not the client. एंड वो अभी अपने को पता भी नहीं है कि ये यहाँ पे 1 होगा या नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे हमने डिटरमाइन कर लिया कि सीनियर कंसल्टेंट के पास जो इनकमिंग फाइल है, द नंबर हैज टू बी मिनिमम 7. करेक्ट, मिनिमम 7. समझ में आया? अरे मैं, फाइल लिमिट इज 5 फॉर 1 रूट. गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. फाइल इज नॉट मोर देन 5 फ्रॉम 1 पर्सन टू एनी अदर. 2 लोगों से तो 7 आ ही सकता है ना. एक आदमी से 5 मैक्सिमम आ सकता है, 2 से तो 7 आ ही सकता है मिनिमम. यस, ठीक है. तो 4 और 3 इधर इधर से आएंगे. लेट्स जस्ट सी दिस केस कि 7 के केस में क्या होगा, ठीक है. कि लेट्स से जस्ट 3 is coming from consultant, 4 is coming from analyst, 4 he is keeping. That means he will be passing on 3. तो 1 या 2 यहाँ पे होगा, 2 या 1 यहाँ पर होगा. करेक्ट, 1 और 2, 2 और 1. Yeah, 1 is not possible, but just for now we also don't know, right, that this is 1. Correct. So but anyway, 1 is not possible. Correct, 1 is not possible. तो 1 2 ऐसे हो सकता है, 1 and 2. ठीक है. अभी अभी is 3 5 possible? Is 3 5 possible? Is 3 5 possible? So now he'll be getting 8 files. He'll be getting 8 files, and he has to transfer 4 files because he is keeping only 4. करेक्ट. 8 फाइल आ रहे हैं, 4 रखना है. दैट मीन्स 4 भेजना है. करेक्ट, 4 भेजना है. 4 भेजने का क्या है तरीका? 1 3 2 2. 2 2 नहीं हो सकता है बिकॉज दोनों में सेम नंबर हो जाएगा. 1 3 हो सकता है क्या? 1 3 भी नहीं हो सकता है बिकॉज ही इज गेटिंग 3 फाइल्स. ही कांट सेंड द सेम नंबर ऑफ फाइल्स. दैट मीन्स 3 5 इज नॉट पॉसिबल. 3 फाइल्स इज नॉट पॉसिबल. मैक्सिमम जो इनकमिंग था फॉर सीनियर कंसल्टेंट वाज 8 ओनली, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 3 आ सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम 5 भी आ सकता है. ठीक है, तो हमने देख लिया 5 3 इज नॉट पॉसिबल. लेट्स चेक 5 2. ठीक है, लेट्स चेक 5 2. ठीक है, 5 2 पॉसिबल है क्या? 5 2 में क्या होगा? 5 2 में 7 होगा. अगेन ही हैज टू सेंड 1 and 2 फाइल्स हियर. So again 5 2 is also not possible because receiving 2 and sending 2 is not possible. ठीक है. So the only possible way here is,
getting 3 files from consultant and 4 files from analyst, right? So this is making sense now. 3 and 4. Keeping 4 here, sending 1 file here. So this cannot be 1. So this has to be 2, right? If this is 2, this will become 1. Right? This is 1, this is 2. So this will be 3. This will be 3. I hope this is clear till now. I hope this is clear till now. Okay, RN is saying, why did you take analyst to consultant 5 if we are taking minimum files transfer? Analyst to consultant 5. ठीक है, नहीं minimum condition नहीं ले रहे. See, you have to start from one point, right? So let's say if you see the case of senior consultant RL, ठीक है, तो senior consultant के पास minimum 4 फाइल होने चाहिए, correct? So यहाँ पे if you send out 5 files, ठीक है, send out 5 files, then in that case you see that only 3 files can come to senior consultant. Okay, let's say if there are only 4 files coming, so यहाँ पे 2 ही फाइल आ पाएगा, यहाँ पे 2 ही फाइल आ पाएगा. एंड वी सॉ दैट केस दैट 5-2 या 4-2 का कंडीशन यहाँ पे वैलिड नहीं, बिकॉज सीनियर कंसल्टेंट हैज टू पास ऑन सम फाइल्स एज वेल. ठीक है, so this number cannot be 2, this number cannot be 2, and that is why we are keeping 5. That is why we are keeping 5, because consultant has to keep at least 1 file. He has to send out to the client 1 file as well. ठीक है, एनालिस्ट टू मैनेजर विल बी 3. ठीक है, तो वो अपने को नहीं पता है एनालिस्ट टू मैनेजर, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी फाइल्स मैनेजर इज कीपिंग. ठीक है, तो दैट आई मीन यू कैन सी दैट मैनेजर इज सेंडिंग 3 फाइल्स. दैट मीन्स ही मस्ट बी रिसीविंग एटलीस्ट 3. he must be receiving at least, I mean sorry, more than 3, because he has to keep at least 1 file for himself. ठीक है, तो 4, 5, 6 कुछ भी नंबर ऑफ फाइल्स इसके पास आ सकते हैं. ठीक है, 4, 5. तो लेट्स से अगर यहाँ से 4 फाइल आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स से इफ देयर आर 4 फाइल्स कमिंग दिस वे, ओके, सो 4 and 5 and he's sending 3, so he'll be keeping 2 files. Yes. Agar number of files is 5 coming this way, 1 coming this way, right? So 6 files and 3 is passing on, so 3 is again a possibility. Why 3 files cannot come from analyst? 3 आएगा तो होगा क्या? He'll be left with only 1 file, right? He'll be left with only 1 file, and I think every person is also the number of files which is stored with. So again, so he'll be receiving 3 and he'll be sending 3. So again, that is not possible. So 3 is not possible here, 2 is not possible here, 1 is not possible. The only 2 possibilities are 4 and 5, and the number of files to be kept with manager is 2 and 3. Okay, so now we have all the information related to this set. हाँ, वही तो मैं बोला यार, 3 लेके 3 दे नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 नहीं आएगा. ठीक है, तो एनालिस्ट से 3 आएगा और 3 था ने भेज नहीं सकता है, इसलिए 3 इज नॉट पॉसिबल हियर, ओनली 4 and 5 इज पॉसिबल. ठीक है, तो अभी चलो क्वेश्चन पे देखते हैं. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. अभी कोई क्वेश्चन है इस पे? अभी कोई क्वेश्चन है इस पे? नहीं, एनालिस्ट से कंसल्टेंट जो है वो 5 इसलिए हमने लिया है. ठीक है, वो 5 मत लो. ठीक है, अगर वो 5 नहीं लेना है तो यू कैन गो फॉर 4, यू कैन गो फॉर 3. ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? 3 देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक वो फाइल खुद रखेगा, एक भेजेगा, एक यहाँ आएगा. ठीक है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2 जगह पे वो 1 फाइल सेंड कर रहा है. दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज इधर 4 और 5, राइट? द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर 4 and 5. ठीक है, सो 4 में भी यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम ही कैन सेंड इज 2 फाइल्स in 4, and we have seen that 2 is not possible here because he has to pass on 2 files to either client or manager. ठीक है, so again 4 will be ruled out, so only possibility is 5. The reason, okay, Sagnik is saying why consultant is having only 1 file, why not 2, right? उसका रीजन भी हमने डिस्कस किया है. ठीक है, उसका रीजन ये है कि लेट्स से इफ द नंबर ऑफ फाइल्स इज नॉट 3 फ्रॉम हियर, वी सॉ द कंडीशंस कि
के 2 होने पे क्या होता है, वी सॉ द कंडीशन की एनी दिस इज एनी अदर नंबर व्हाट विल बी द केस. If this number is not 3, our conditions are not satisfied for senior consultant. Okay, and that is why if he has to pass on 3, he has to keep 1 file. Okay, chalo फिर let's now move to the questions. What is the number of files sent by the analyst to senior consultant? So the answer to this question is 4. Okay, 4. Okay. Now, what is the number of files sent by manager to the client? Sent by manager to client, 3 files. Sent by manager to client is 3 files. Okay, Keshav is saying in point number D, it is mentioned that sent files are unique except for analyst to consultant to senior consultant to manager should be 4 5 now. Sorry, consultant to senior consultant to manager should be 4 5. No, so these are also unique. Consultant is sending 3 files and senior consultant is sending 1 file. So these are unique. And these numbers are getting repeated 5 4 and 4 5, and it says that this rule does not apply for analysts. So this number, while you can say that how can this is also 4 and this is also 4, because this rule is not applicable for analysts. Correct. So manager is not receiving this file from consultant. If let's say manager would have been receiving 3 files from consultant directly, he cannot then pass on three files. ठीक है, जो भी जितना एक्सेप्ट कर रहा है उतना ही भेज नहीं सकता है, बट ऑब्वियसली देयर इज सीनियर कंसल्टेंट इन बिटवीन, तो यहाँ पे 3 पास ऑन कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे 3 पास ऑन कर सकता है. आई होप दिस क्लियर नाउ. करेक्ट यस. ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइल्स सेंट बाय मैनेजर टू क्लाइंट? तो ये देख लिया हमने, 3 फाइल यहाँ पे भेज रहा है मैनेजर. What is the number of files which are of use to consultant? तो consultant कितना फाइल रख रहा है? one file. Okay. What is the number of files sent by analyst to consultant? So number of files sent by analyst to consultant is 5. I hope this is clear now. I hope this is clear. Any questions with this? Any questions with this? No? Awesome. ठीक है. तो let's just quickly jump to the next set. अगले सेट पे चलते हैं. ठीक है, अगले सेट पे चलते हैं. This set is on games and tournaments and this is a previous year question. So all the chess lovers, ठीक है, feel excited because जो लोग चेस लवर है ना उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है. ठीक है, जो लोग चेस लवर नहीं है उनके लिए भी इनफैक्ट आसान ही है, बट चेस लवर लोगों के लिए ज्यादा आसान है क्योंकि दे कैन विजुअलाइज ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली. ठीक है, सो आई थिंक कैट के लिए थोड़ा बहुत चेस खेलना भी स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, वो लोग थोड़ा चेस लवर्स को सपोर्ट कर रहे हैं. तो जल्दी से इसको देख लेते हैं. ठीक है, इन 8x8 चेस बोर्ड. ठीक है, तो कितने लोगों का किया हुआ है ऑलरेडी ये वाला सेट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड आई फील दैट कुछ लोगों ने किया होगा ऑलरेडी. कितने लोगों का किया हुआ है, कितने लोगों का नहीं किया हुआ है? इफ आई कैन सी इट इन द चैट. अच्छा, ओके ओके ओके, तो कुछ लोगों का किया हुआ है, कुछ लोगों का नहीं किया हुआ है. आई थिंक यहाँ पे आई डोंट सी एनी क्लियर मेजोरिटी, तो आधे आधे लोग हैं. ठीक है, और यस, तो अमन बजाज इज रिमाइंडिंग मी ऑफ प्रग. ठीक है, तो प्रग रिसेंटली ऑलमोस्ट डिफीटेड मैग्नस कार्लसन. ठीक है, मतलब एंड में अच्छे पोजीशन से बेचारा हार गया यार. ठीक है, खैर चलते हैं. अच्छा, योर टीम मैग्नस, तो आई एम तो ऑलवेज टीम इंडिया. सही है अनुज, खेलते रहो, मजा आएगा. तो लेट्स जस्ट सी इन अ 8x8 चेस बोर्ड ऑफ अ क्वीन प्लेस्ड एनीवेयर. ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, एक बार आई जस्ट आस्क यू ऑल टू गो थ्रू दिस सेट वंस एंड टेल मी, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है, जिन्होंने सॉल्व किया है दैट दे तो ऑलरेडी नो. ठीक है, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है जस्ट लेट मी नो इन द चैट व्हाट डू यू फील अबाउट दिस क्वेश्चन. व्हाट डू यू फील, वेदर दिस एन इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, तो किस तरह का लग रहा है? जल्दी से बताओ.
बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, एकदम इंडियन इंडियन चेस ब्राइट दिख रहा है अभी। गुकेश प्रग ये सब पछा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ पीपल आर सेइंग इजी टू डुएबल। ठीक है, विदित गुजराती यार मतलब ठीक है, अच्छा अच्छा प्लेयर है, बट मतलब आई डोंट फील कि अभी विदित गुजराती का एज है। ठीक है, वो ऑलरेडी पीक पे है अपनी काइंड ऑफ। ठीक है, so let's just read the set. In a 8 by 8 chessboard, a queen placed anywhere can attack another piece if the piece is present in the same row or the same column or any diagonal position or in any in any four possible directions, provided there is no other piece in between. The column are labeled A to H from left to right. So A to H, left to right. This is A, B, C, D, E, F, G, and H. A to H. And the rows are numbered 1 to 8 from bottom to top. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correct. The position of a piece is given by the combination of column and row. Okay. Column and row. For example, position C5 means that Cth column. So C5 कहाँ पर आएगा? So this is C and this is 5. Correct. So this is C5. This is C5. Yes. Now let's just jump to the questions. Let's just jump to the questions. If the queen is at C5, so let's say queen is here. The queen is here, and the other pieces are at position C2. Okay. So there is one player at, so one piece at here. Okay. C2 पे है G1. ठीक है, G1 that means here. ठीक है, G1, G3, G5 and A3 and A3. Okay. So it says how many pieces are under attack by the queen. ठीक है, how many pieces are under attack by the queen. So this is a very easy set. ठीक है, तो जो भी सेम रो सेम कॉलम में है तो दे आर तो डेफिनेटली अंडर अटैक. ठीक है, सो ये वाला तो अंडर अटैक है, ये वाला भी अंडर अटैक है. नाउ डायगोनल पे भी अटैक करता है क्वीन. क्वीन अटैक्स ऑन डायगोनल एज वेल इन ऑल द फोर डायरेक्शन. सो दिस इज ऑल्सो अंडर अटैक. करेक्ट. Similarly, this is also under attack. Correct. So four are under attack. Only this piece is safe from queen as at this point, right? So four pieces are under attack. Four pieces are under attack. ठीक है, मेरे को सुबह सुबह से चेस का क्वेश्चन करके मेरे को ऐसा फील आ रहा है जैसे लॉकडाउन में चेस पे इंडिया पे सागर सा चेस सिखाता था. ठीक है, तो अभी चलते हैं. हाँ, समय रहना भी स्ट्रीम करता था. ये कैट का कैसे हो सकता है? बहुत ही बढ़िया सवाल. ये कैट की तरफ से चेस लवर्स को एक गिफ्ट था. ठीक है, इफ द अदर पीसेस आर ओनली एट पोजीशंस A1 A3. ठीक है, अभी वापस से बनाना है तो वहीं पे चल लेते हैं. ठीक है, A1 पे है या फिर वी कैन राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G and H. ठीक है, सो कहाँ कहाँ पे पीसेस हैं? A1 पर है हियर, A3 पर है, B4 पे है, D7 पे है, H7 पर है एंड H8 पर है. So these are the pieces. Then which of the following position of the queen results in the maximum number of pieces being under attack? ठीक है, so यहाँ पे क्या है ना कि चार ऑप्शंस दिए हुए, तो वी हैव टू पिक from these options only. Okay. If this option would not have been given, then this question would have been slightly, I think, moderate to difficult, because then you'll have to check from a lot of places कि कहाँ से maximum pieces attack में आ रहे हैं. ठीक है, but since options are already given, you have to just check for these four options only. ठीक है. ठीक है, तो देखते हैं F8. अगर let's say if the queen is at F8. ठीक है, if the queen is at F8. हाँ तो so
Ishan is saying कि one suggestion that people to carry pen and pencil in the CAT exam. ठीक है, तो पेन तो anyways they give you. ठीक है, और जो वहां पे यार टेबल तो बना सकते हैं ना, जो वो पेपर देते हैं जहाँ पे पेपर जो देंगे, पेन तो वो लोग देंगे ही, तो पेंसिल से ही बनाना जरूरी नहीं। ठीक है, इफ यू डू इट नीटली, ठीक है, तो इट इज इजी। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। नहीं यार, इतना मल्टीपल कलर लगाने लगोगे तो टाइम इसमें ही चला जाएगा। वो तो मैं समझाने के लिए बार बार अलग अलग डायग्राम में समझा रहा हूँ, करने का तो उस क्वेश्चन में भी कर सकते हो। ठीक है, देन विच आर द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द क्वीन रिजल्ट्स इन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बीइंग अंडर अटैक। F8 पे अगर होगा, लेट्स से इफ द क्वीन इज एट F8, इट कैन अटैक दिस। ठीक है, एंड सिंस दिस इज इन द सेम डायगोनल, इट कैन अटैक दिस, सो ओनली टू आर अंडर अटैक। सो F8 के लिए दो पीसेस आर अंडर अटैक। व्हाट अबाउट A7? इफ द क्वीन इज एट A7, ठीक है, this D7 is at attack and A3 is at attack. Nothing else is under attack. So two pieces under attack when the queen is at A7. So when the queen is at C1. Okay, so now when the queen is at C1, okay, so this A1 is under attack, A3 is under attack. Uh, is there anyone else who is under attack? No. So again, 2 is under attack. D3. Now the queen is at D3. ठीक है, तो D3 पे है, तो A3 is under attack, D7 is under attack, and H7 is under attack, right? So three in case of D3. Okay, Ankit is saying A7 पर 4 नहीं होंगे। कैसे 4 होंगे यार? मान लो क्वीन यहाँ पर है, let's say queen is here, ठीक है, तो A3 is under attack and D7 is under attack। इसको हटा करके यहाँ पे अटैक कैसे करेगी? मान लो यहाँ पे ऑलरेडी कोई खड़ा है, तो उसको ही पहले अटैक करेगी ना, है ना? I hope this is clear. Now, if this, so among these options, D3 is the answer. Among these options, D3 is the answer. ठीक है, अभी let's say if these options would not have been given, ठीक है, if these options would not have been given, then what do you feel? What should be the answer? What should be the answer? What should be the answer? How many pieces maximum queen can attack? Let's say if the question would have been, ठीक है, अच्छा, repeat for D3, ठीक है, so now let's say queen is here, queen is at D3, so queen will be attacking the piece at A3, queen will be attacking the piece at D7, and since this is also a diagonal, H7 is a diagonal for D3, so queen will be attacking this as well. So that is why three pieces are getting attacked when the queen is at D3. Correct. So G7 पे, let's say if the queen is at G7, अगर queen अगर यहाँ पे होती, तो queen can attack this, queen can attack this, queen can attack this, ठीक है, and A1 is at the diagonal also, A1 is at the diagonal also, that means queen can attack now 4 instead of 3, queen can attack 4, ठीक है, 4 से ज्यादा आ रहे हैं क्या कहीं पे भी? 4 से ज्यादा अटैक कहीं से कर रहे हैं? No. So the maximum number of pieces that can come under attack with queen, ठीक है, if these options are not given, is actually 4, ठीक है। हाँ, तो मल्टीपल कई जगहों से चार चार पीसेस पे अटैक कर सकते हैं। G7 इज वन ऑफ देम, G7 इज वन ऑफ देम, ठीक है। सो दैट इज वाई उस क्वेश्चन में ना पोजीशन नहीं पूछता, पोजीशन नहीं पूछता, उस क्वेश्चन में पूछता कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस which can be under attack from the queen if it is allowed to move anywhere on the board, ठीक है, ठीक है। I hope this is clear now. I hope this is clear. Let's just move to question number 3. Let's just move to question number 3. If the other pieces are only at positions A1, okay, there is one here, A3, B4, D7, H7, and H8, okay, then from how many positions queen cannot attack any of the pieces? अभी तक था कि queen कितने जगह से अटैक कर सकते हैं, now it is saying कि from how many positions queen cannot attack any of the pieces, ठीक है, queen cannot attack any of the pieces। तो
So if queen is in this row, then it is going to attack this piece. ठीक है, तो ये तो already eliminate हो गया. This is not possible, this is not possible, right? This is not possible, this is not possible, right? This is not possible, this is not possible, this also is not possible, this also is not possible. Yes, इतना तो क्लियरली दिख रहा है. इसके अलावा देयर आर डायगोनल्स एज वेल, देयर आर डायगोनल्स एज वेल. ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज दिस इज इन द सेम डायगोनल. ये जो बड़ा वाला डायगोनल है, यहाँ पे भी क्वीन कैन नॉट बी देयर बिकॉज इट इज गोइंग टू अटैक टू पीसेस. ठीक है, ये वाला है तो इसके लिए भी ये वाला डायगोनल पे क्वीन कैन नॉट बी देयर. ठीक है, ये एक पीस यहाँ पर था, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ठीक है, so now see how many places are available for queen so that these pieces are not under attack. So 1 2 3 here, 1 2 3 here, and 4 here, right? 1 2 3 here, 4 here. Correct? नहीं, यहाँ से भी तो अटैक कर देगा ना D7 पे. So this is also not possible. So one more possibility is here. So this is the 4, this is the 4. 4 होगा, 4 यहाँ पे भी तो है ना. If let's say the queen is here, it is going to attack no. ठीक है, so I hope this is clear. I hope this is clear to everyone. Answer is option number 3. कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई डाउट? Are we going too fast? या ठीक है, ठीक है ना? Okay, repeat please. ठीक है, तो सौरभ, let's say there are few pieces at A1. तो ठीक है, तो पीस को रिप्रेजेंट करने के लिए I'll write P. ठीक है, I'll write P here, P here, P it as D7, B4, H7 and H8. ठीक है, तो ये जो पीसेस हैं, अगर उसके सेम रो और कॉलम में क्वीन जाएगा तो इट इज गोइंग टू अटैक दैट पीस. करेक्ट? तो जो जो रोज एंड कॉलम्स है, पहले तो उसको एलिमिनेट कर दिया हमने. ठीक है, तो दिस रो इज एलिमिनेटेड, दिस रो इज एलिमिनेटेड, दिस रो इज एलिमिनेटेड. ठीक है, दिस रो इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, this row is also eliminated. So that means queen cannot be in these 1 2 3 4 5 rows. Queen cannot be in these 5 rows. Now what about the columns? Queen cannot be present in this column, queen cannot be present in this column, queen cannot be present in this column, queen cannot be present in this column. ठीक है, तो रो एंड डायगोनल, रो एंड कॉलम को हमने एलिमिनेट कर दिया. अभी हम लोग को डायगोनल भी देखना पड़ेगा बिकॉज क्वीन कैन अटैक ऑन डायगोनल एज वेल. ठीक है, तो नाउ जो A3 B4 वाला डायगोनल है, ये इस पे क्वीन कैन नॉट कम. ठीक है, जो A1 H8 वाला piece है, so in this diagonal also queen cannot come, so this is also not possible. Since this is at H7, तो ये वाला diagonal भी possible नहीं है. ठीक है, ये वाला possible भी नहीं है. ठीक है, इधर से अगर देखो तो ये diagonal भी possible नहीं है और ये diagonal भी possible नहीं है. ठीक है, so if you see there are only four boxes left where queen can go. Only 4 boxes left where queen can go, which is this was A B C D E F G and H. ठीक है, तो D1 sorry D2 F2 and G2, D2 F2 and G2 and G5 as well, right? G5. अच्छा सॉरी, ये E है, E2 F2 G2 and G5. ठीक है, आई होप दिस क्लियर ना. ओके, हाँ, तो जैसे जैसे क्लियर हो जाएगा वैसे लिख के कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. सपोज द क्वीन इज द ओनली पीस ऑन बोर्ड एंड इट इज एट पोजीशन D5. ठीक है, सो ABCD एंड 8 7 6 5. ठीक है, सो क्वीन इज एट D5. In how many positions can another piece be placed on the board such that it is safe from the attack of the queen? तो अभी अपने को ये देखना है कि कितने जगह पे एक पीस को रख सकते हैं सो दैट इट इज नॉट अंडर अटैक फ्रॉम क्वीन. ठीक है, सो नहीं, हर जगह अटैक नहीं कर सकता ना यार क्वीन, तो इस वाले में सबको अटैक करेगा.
ठीक है, सेम रो में, सेम कॉलम में, करेक्ट, सेम कॉलम में, ठीक है। अभी इसके बाद इस डायगोनल पे भी एवरीवन विल बी अंडर अटैक, इस डायगोनल पे भी एवरीवन विल बी अंडर अटैक, इस डायगोनल पे भी एवरीवन विल बी अंडर अटैक, सेम विद दिस डायगोनल, ठीक है, same with this diagonal. So now if you see, you can count the number of boxes where pieces are under attack, and then you can subtract it from 64, and that will give you the answer. I hope the approach is clear. Why are we subtracting from 64? Because 8 by 8 का square है, ठीक है, 8 by 8 का है, so total number of boxes are 64, ठीक है, so total number of boxes are 64. तो अभी हाँ ऑब्वियसली, हाँ हाँ, क्वीन एक जगह तो क्वीन दिया हुआ है, तो वो तो वैसे भी अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड, ठीक है। हाँ, क्वीन की जगह अगर नाइट होता देन दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि नाइट थोड़ा ना बहुत ही विचित्र रानी है, ठीक है, वो 2.5 चाल चलता है, ठीक है, और वो किधर भी घूम सकता है। तो just try and solve this one, and tell me what is the answer, in the chat, guys. Tell me what is the answer in the chat, ठीक है। Okay, so 36. So 36 is the answer. 36 is the answer. I hope this is clear. I hope this is clear. I hope this is clear. Okay, awesome. ठीक है, very very good, very good. ठीक है, हाँ, तो ये वाला इजी लगा, ये वाला इंटरेस्टिंग भी था, एंड दैट्स व्हाई आई केप्ट इट, ठीक है। एंड सुबह सुबह थोड़ा चेस भी डिस्कस करना था मेरे को, ठीक है, तो हमने वो भी कर लिया है, ठीक है। हाँ, क्वीन को माइनस करना पड़ेगा ना, क्वीन की जगह पे पीस थोड़ी आ जाए। चेस में ये भी होता है, एक पीस के ऊपर दूसरा पीस नहीं बैठ सकता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक फॉर चेस, ठीक है। लूडो की तरह नहीं होता कि एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है, लूडो में तो क्या होता है कि एक के ऊपर एक आ जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है, विच इज नॉट एप्लीकेबल इन चेस, ठीक है। ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, ठीक है। सो काफी लंबा चौड़ा सवाल है, सो अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ठीक है। आई वाज एक्चुअली गोइंग टू कीप दिस सेट ओनली, बट वो वाला सेट एक तो चेस के ऊपर था और उतना उतना डिफिकल्ट नहीं था, तो आई थॉट कि वी कैन एंड दैट वाज आल्सो अ प्रीवियस ईयर चेस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सॉरी डीआईएलआर क्वेश्चन, तो इसके लिए भी उसको मैंने रख लिया था एक। करेगा जिसको चेस आता है उसके लिए, तो दैट वाज अ सिटर, ठीक है, उसको तो मतलब कुछ करना ही नहीं था वहाँ पे, 3 4 का नंबर उठा के करा जाना, ठीक है। सो नाउ जस्ट, सो आई फील दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, so now let's just keep 5 minutes, 5 minutes to read this set, ठीक है, to read this set, and then maybe we can discuss the approach, and उसके बाद फिर हम लोग, एक बार मैं सुनूंगा कि तुम लोग का क्या अप्रोच है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, हाउ डू यू फील दैट यू शुड गो अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड उसके बाद हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जस्ट टेक 5 minutes, 5 minutes इज आई थिंक स्लाइटली मोर, 3 मिनट ले लो, 10 10 हो रहा है, 10 13 पे बताओ।
ऑलराइट, तो आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. अमन गोस्वामी, आई मीन ग्रेट जॉब डन. ठीक है, आई थिंक तुम शर्लॉक बन सकते हो भाई. ठीक है, तुम बिल्कुल शर्लॉक बन सकते हो, बिकॉज जस्ट लुकिंग एट द ऑप्शंस, आई मीन यू हैव गेस्ड द फाइनलिस्ट एंड दैट टू करेक्टली. ठीक है, दैट टू करेक्टली, सो दिस इज ऑसम. ठीक है, तो अभी अभी देखते हैं, अभी देखते हैं. आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया. यस, ठीक है. Now just let me know, once you have gone through this question, what do you think? I mean, पहले तो ये बताओ कि इजी लग रहा है, डुएबल लग रहा है, कैसा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, डुएबल लग रहा है. वेरी गुड. ठीक है, बहुत ही अच्छा है. अभी let's say this is the question that you see in a mock scenario or in a CAT scenario. ठीक है, so how do you guys, I mean, how do you guys are going to go about solving this one? ठीक है, क्या करेंगे, मतलब what should be your approach? ठीक है, what should be your approach? I can see someone have written in the chat कि पहले नंबर ऑफ मैचेस प्लेड निकालना होगा, इसमें फिर बता पाएंगे कि कौन किसके साथ खेल रहा होगा, एंड वो बताने के लिए पॉइंट्स को ब्रेक भी करना होगा. ठीक है, सो वन इज दैट अप्रोच. ठीक है, वन कैन फाइंड नंबर ऑफ मैचेस डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, तो सब लोग पहले नंबर ऑफ मैचेस से ही डिटरमाइन करें. तो टेल मी, सो नाउ you have read this one, so tell me what is the number of matches in the entire tournament for one player, max 12. Correct. So all the finalists will be playing 12 matches. ठीक है, तो एक बार मैं भी एक बार सेट पढ़ लेता हूँ. 12 hockey teams, 12 hockey teams participated in men's pro league hockey tournament. Okay, so these teams were distributed equally into two pools, A and B. In the first round, each team played a match against all the other teams in its pool. ठीक है, तो दो पूल में डिवाइड कर दिया. One pool is A, which is having A1 to A6, and the other pool is B, which is B1 to B6. ठीक है, तो दो pool हैं, 6 teams each. Then 3 teams with the highest points from each pool qualified for the second round. ठीक है, तो पहले वाले pool में let's say A वाले में और B वाले में 6 प्लेयर थे, 6 टीम थे. ठीक है, and everyone is playing every other one. ठीक है, so now this is a round robin. You can say this is a round robin kind of a tournament. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, बी में भी 1 2 3 4 5 6. एवरी प्लेयर इज प्लेइंग एवरी वन, एवरी प्लेयर इज प्लेइंग एवरी अदर प्लेयर. ठीक है, सो A1 will be playing how much match? 5 matches in round 1, which is true for all the other, which is true for all the other players as well, all the other teams as well. अभी यार क्वेश्चन पे मत जाओ, let's just go through the set once. ठीक है, क्वेश्चन पे आएंगे बाद, क्वेश्चन पे आएंगे. क्वेश्चन और ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना आई फील इज अ गुड अप्रोच इन द टेस्ट, बट नॉट व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग. ठीक है, नॉट व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग. ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. तो एवरी टीम इज प्लेइंग 5 मैचेस इन द फर्स्ट राउंड. ठीक है, सेकंड राउंड में क्या होगा? देयर इज वन कंबाइंड पूल जहाँ पे कि टॉप 3 यहाँ से, टॉप 3 यहाँ से आ जाएंगे. तो अगेन 6 टीम्स विल बी देयर, अगेन 5 मैचेस. ठीक है, एंड इन द finals there will be 3 teams, and every team is going to play every other team. So again now here 2 matches. ठीक है, so in total for every team which is going to reach the finals, it has to play 5 matches here, 5 matches here, and 2 matches here. That means 12 matches for finalists. Correct, 12 matches for finalists. What about those who get eliminated in the after the second round? जो second round में eliminate हो गए, second round में जो लोग eliminate हो रहे हैं second round, how many matches they are going to play? 5 matches in round 1 and 5 matches in round 2. How 5 matches in round 2? ठीक है, तो round 2 में again there are 6 teams. Guys, round 2 में again there are 6 teams. Top 3 from here, top 3 from here. Let's say A1 A2 A3 अगर यहाँ से जीतते हैं और B1 B2 B3 यहाँ से जीतते हैं, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3. So there will be 6 teams in round 2. 6 teams in round 2. Every team is playing every other team. That means 5
A1 is going to play against 2, 3, B1, B2, B6, B3, sorry. So 5 matches for A1, 5 matches for A2, 5 matches for this. So everyone is playing 5 matches, right? And yes, who would play whom? ये तो अभी क्वेश्चन पे आना नहीं, अभी क्वेश्चन अभी जितना इंफॉर्मेशन दिया अभी वही यूज कर रहे हैं. अभी वी डोंट नो हु इज प्लेइंग होम. ठीक है, वी डोंट नो दैट. ठीक है, तो आई एम सेइंग कि जो फाइनलिस्ट हैं दे आर प्लेइंग 12 मैचेस. The people who got eliminated after second round, how many matches they are playing? They are playing 10 matches, 5 in round 1 and 5 in round 2. Yes, players who teams who are getting eliminated in the first round only, how many matches they are playing? 5 matches, 5 ना. ठीक है, so at least we know this much. ठीक है, कि जो लोग फाइनलिस्ट होंगे वो 12 मैच खेलेंगे, जो सेकेंड राउंड में एलिमिनेट होंगे वो 10 खेलेंगे, एंड जो फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट होगा वो 5 खेलेगा. ठीक है, अभी आगे देखते हैं. 3 टीम्स तो ये तो बता दिया. ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन. 3 teams with highest average qualified for the final. In the final round, all 3 played against each other, and the one with the highest average points was declared to be the winner of the tournament. A winner of any match gets 2 points, the loser loses 1 point, and in case of draw, both the team gets 1 point each. Okay. Average points of a team are defined as the total points earned by the team so far by divided by the number of matches played by the team so far. Okay. The following table gives the total points earned and average points for each team at the end of the tournament. Okay. At the end of the tournament, this is the table. This is the table. So looking at this table, we can clearly say that A1 is going to win this tournament. Correct? A1 is going to win this tournament. सबसे ज़्यादा average point इसका ही. Correct? सबसे ज़्यादा है A1 का. So then we can say that A1, if A1 is going to win the tournament, that means A1 must have played the final. That means A1 must have played 12 matches. Correct? Correct? Okay. अभी B2 के बारे में आ जाओ. What about B2? B2 also has scored 13 points with an average of 1.08. ठीक है, 13 points with an average of 1.08. ठीक है, तो इसका मतलब this also is 12. This also is going to play 12 matches. फाइनलिस्ट वही होंगे जिसका एवरेज मोर और लेस बाकी लोगों से ज्यादा होगा. रनर अप है, बट अभी अभी उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, अभी रनर अप तो है, दैट यू कैन सी दैट दिस इज द विनर, दिस इज द रनर अप. हु इज द थर्ड, हु इज एट द थर्ड पोजीशन? थर्ड पोजीशन पे B6 है. थर्ड पोजीशन पे B6 है, दैट इज B6 आल्सो मस्ट हैव प्लेड द फाइनल, एंड B6 B6 का भी फाइनल है. तो so these are the 3 players. These are the 3 players. अच्छा नहीं नहीं, करेक्ट करेक्ट गाइस. B6 A5 भी है. करेक्ट करेक्ट. A5 also if you see. ठीक है ठीक है, A5 को मैंने क्यों नहीं लिखा? I'll explain. ठीक है, I'll explain. ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है भाई. अरे भाई रुक तो जब बताने तो दो. ठीक है, A5 में you see A5 scored 8 points and average point is 0.8. That means number of matches we can determine. Number of matches कितना है? 10 है. ठीक है, number of matches कितना है? 10 है. ठीक है, and if you do the same calculation for B6, 7 divided by 0.58, this would roughly come out to be 12. ठीक है, this would roughly come out to be 12. ठीक है, so मैंने ऐसा कुछ नया कुछ नहीं किया है. I have just divided all these points by the average points. ठीक है, उससे यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है. ठीक है, कुछ ऐसा नया नहीं किया है, सेम किया है. ठीक है, so now we know that A1, B2 and B6 are finalists. तो पहले वाले सवाल का तो आंसर हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं. पहले वाले सवाल का तो आंसर हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं. Which 2 teams do not play against each other in the final? So A5 was not in the final, so that means this is our answer. Correct? So even without solving it, without doing anything, ठीक है, even without doing anything, we could have answered at least the first question. ठीक है,
नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पे निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस। यहाँ पे अगेन 5 पॉइंट्स, एवरेज 0.5, दैट मीन्स 10 मैचेस, करेक्ट। 5 मैचेस हियर, 5 मैचेस हियर, ठीक है, 5 मैचेस हियर, 10 मैचेस हियर, 5 मैचेस हियर, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे? नाउ सो दीज टू हैव स्कोर्ड 0-0, ठीक है, 0-0 किया है। इसका मतलब ये लोग फर्स्ट फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि 0 करके तो सेकंड राउंड में जाएंगे नहीं ये लोग, करेक्ट। सो दीज टू ऑल्सो मस्ट हैव प्लेड 5 मैचेस, ठीक है, दीज टू ऑल्सो मस्ट हैव प्लेड 5 मैचेस। सो नाउ वी कैन क्लियरली से, नहीं ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं जीते, दे कुड हैव वन वन मैच एंड दे कुड हैव लॉस्ट 2 मैचेस, तो इवेंचुअली द टोटल स्कोर इज 0, ठीक है, नेट इज 0, ठीक है। तो 5 वाले कितने हो गए? 5 वाले कितने हो गए? 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 हो गए, ठीक है। तो 6 हो गए, ठीक है। तो 6 पीपल मस्ट हैव एलिमिनेटेड इन आर राउंड नंबर 1। तो बिल्कुल सही है, हमारे कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रहा है। 6 पीपल एलिमिनेटेड इन राउंड नंबर 1, सो दीज आर दो 6 पीपल, ठीक है, दीज आर दो 6 पीपल। Now, let's just see if there is anything else that we need to do in order to solve the questions, ठीक है। अभी हम लोग को थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, विच इज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट वन बोथ इट्स मैच इन द फाइनल्स। तो A1 इज गोइंग टू विन both the matches against B2 and B6, ठीक है, that we know, that we know। And the second information which is given is, at the end of the second round, the total points earned by the teams who have qualified for the second round is 50, ठीक है। So sum of points at the end of second round is 50, ठीक है। ये जो 6 प्लेयर्स जो यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका जो सम आएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स का, दैट इज 50, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके लिए जगह बना देता हूँ यहाँ पे, देखने के लिए जगह रह नहीं गया है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ गाइस? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो पहला नंबर सवाल जो था वो तो हमने ऐसे ही कर लिया है, ठीक है, वो तो हमने ऐसे ही कर लिया है। लेट्स जस्ट लुक एट द अदर क्वेश्चंस आल्सो, कि इफ इट इज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग एल्स और नॉट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय A2 एंड A4 इन द फर्स्ट राउंड। A2 एंड A4 इन द फर्स्ट राउंड, ठीक है, total number of matches won by A2 and A4 in the first round, ठीक है। So how do you think guys you should approach this one? क्या अप्रोच होना चाहिए इसके लिए? क्या अप्रोच होना चाहिए? Till now you guys have, I mean, looked at only question number 1 and set उसके हिसाब से अप्रोच डिसाइड किया था। This is, ठीक है। So now this is kind of a linear equation बना सकते हैं यहाँ पे। लीनियर इक्वेशन मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि जीतने का नंबर कितना मिलेगा, जीतने का 2 पॉइंट मिलेगा, हारने का -1, एंड ड्रॉ में क्या हो रहा है? ड्रॉ में एक ही पॉइंट सबको मिल रहा है, सो +1, ठीक है। सो नाउ लेट्स से, इफ A इज द नंबर ऑफ मैचेस वन बाय A2, B is the number of matches lost by A2, and C is the number of matches drawn by A2, ठीक है। So A plus B plus C कितना होना चाहिए? What is the number of match that they are playing? Number of match they are playing is 5, करेक्ट। आप दोनों के लिए नहीं, एक के लिए कर रहे हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करके, ठीक है। A plus B plus C 5 है हमारा, एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट 2A minus B plus C, this should be 0 because we know the total point is 0, ठीक है। So you can solve this and
और यहाँ पे क्लियरली यू कैन ऑल्सो सी के एक अगर जीतता है तो ही विल गेट 2 पॉइंट्स, दैट मीन्स 2 पॉइंट्स। अभी अगर दो हारेगा तो ये वापस से जीरो पे आ जाएगा, ये वापस से जीरो पे आ जाएगा, करेक्ट। अभी इट हैज 2 more मैचेस टू गो, तो एक ड्रॉ करेगा एक हार जाएगा, ठीक है, एक ड्रॉ करेगा एक हार जाएगा, तो अगेन जीरो, ठीक है। सो दिस इज one case which is satisfying our condition. He is getting 0 points at the end of round 1, ठीक है। तो एक जीत रहा है, दो हार रहा है, एक ड्रॉ कर रहा है, एक और हार रहा है, तो दैट मीन्स 1 win 3 losses and 1 draw। if you solve this also, if you solve this as well, ठीक है, then also you'll get the same result, then also you'll get the same result, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर सॉल्व करोगे तो सेम ही आएगा, नहीं नहीं, यू डोंट नीड वन मोर इक्वेशन, यहाँ से ही हो जाएगा, बिकॉज ए एंड सी विल कम आउट टू बी सेम, ठीक है, ए एंड सी विल कम आउट टू बी सेम। हाँ हाँ, दिस इज द ओनली ओनली पॉसिबिलिटी। लेट्स से अगर 2 विन हो जाता है, अगर 2 विन हो जाता है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 हो गया, ठीक है। हाँ चलते, अच्छा कर रहे हैं डिस्कस, आई एम नॉट स्किपिंग, ठीक है, हम लोग इस अप्रोच पे भी जाएंगे। पहले 2 विन हो सकता है क्या, जस्ट टेल मी इफ इट इज पॉसिबल फॉर A2 टू विन 2 मैचेस। नो, 2 विन पॉसिबल नहीं, करेक्ट, 2 विन पॉसिबल नहीं, एक विन पॉसिबल है, ठीक है। सो नाउ एक विन का कंडीशन हमने देख ही लिया है, ठीक है, एक विन का कंडीशन हमने देख लिया है। व्हाट अदर दिस पर्सन कैन डू, लेट्स से ड्रॉ करता है और लॉस करता है, बस यही चीज हो रहा है, ठीक है, ड्रॉ लॉस। तो नाउ अगेन देयर इज वन प्लेस व्हिच इज लेफ्ट, अब जो भी यहाँ पर आएगा उतना पॉइंट हो जाएगा, सो दैट मीन्स ड्रॉ लॉस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो दिस इज द ओनली केस with which you are going to get zero as a possible result, ठीक है। now let's see कि हम लोग इस वाले में क्या करते हैं, ठीक है, इस वाले में क्या करते हैं, तो कुछ करना नहीं है यार, यहाँ पे बस यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है, तो होगा क्या, और मे बी ऐड दीज टू, ठीक है, ऐड दीज टू, तो होगा क्या, सो बी विल गेट एलिमिनेटेड, बी विल गेट एलिमिनेटेड, ठीक है, b will get eliminated, this will become 3a plus 2c, and this is 5 on the other hand side, 3a plus 2c is 5, okay। Now if you see, if a is 1 and c is 1, this is satisfying our condition, 3 plus 2 is 5, 3 is 1 and c is 1, this is satisfying our condition। If a is 1 and c is 1, b will be 3, okay। So a was the number of matches won, c was the number of matches drawn, and 3 was the number of matches lost, ठीक है, C was the number of matches lost, so 131 is the so total number of matches won by A2 and A4 कितना हो जाएगा, A2 and A4 कितना हो जाएगा 2, दोनों ने एक एक मैचेस जीते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय A2 and A4 combined is 2। I hope this is clear now, I hope this is clear now, any questions here, clear, बहुत बढ़िया, awesome। So let's now move to the next question, how many points did the second runner up earn in the finals, ठीक है, सेकेंड रनर अप के बारे में पूछा है, दैट मीन्स थर्ड, ठीक है, जो फाइनल्स में थर्ड पोजीशन पे है, करेक्ट। सो B6, ठीक है, तो A1 गया था, और कौन गया था, B2 गया था, और B6, ये 3 लोग गए थे। जो भी विनर ऑफ टूर्नामेंट है, दैट पर्सन इज गोइंग टू विन बोथ द मैचेस, A1 इज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये B2 को भी हराएगा और ये B6 को भी हराएगा, ठीक है। सो +2 इसको हो जाएगा, B2 को हराया था, दैट मीन्स -1 B2 का ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, और B2, सिंस B2 इज द रनर अप, ठीक है, सिंस B2 इज द रनर अप, दैट मीन्स B2 मस्ट हैव वन द मैच अगेंस्ट B6, तभी तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है, तभी तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे सेट में, इफ यू सी, रन रेट, एवरेज रन रेट का बात कहीं पे भी नहीं किया है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक के नेट रन रेट की वजह से this person has become the runner up and this person has become the net
I mean second runner up, right? So if this match would have been draw, तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाता, ठीक है. So now this is also getting zero, this is also getting zero in the finals. That means both of them are runner-ups, and no one is going to be the second runner-up, which is not the case. That means B2 is going to defeat B6. That means B2 is going to defeat B6. तो यहाँ पे इस वाले मैच में क्या होगा? B2 will get +2 and this will get -1. Yes. So how many points did second runner-up earn in the finals? -1 because of A1 and -1 because of B2. So that means -2. Is this clear? Is this clear, guys? 1 and 2 तो वैसे भी possible नहीं था. Only possibility was 0 and -2. I hope this is clear. I hope सबको समझ में आ गया है. सबको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं. After round two, the highest average points of any team are. ठीक है, तो राउंड 2 में पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टीम गए हुए. ठीक है, सो दैट तो वी ऑलरेडी नो. ठीक है, बस एक बार सामने सामने लिख लेते हैं. सो A1 must have gone to round number 2, A3 must have gone to round number 2, A5 must have gone to round number 2 from pool A. करेक्ट. अभी pool B से B2 has gone to round number 2. ठीक है, who else? This B4 and B6. Correct. Final at the end of the tournament, what is their points? So ये 14 पॉइंट पे है. ठीक है, ये 14 पॉइंट पे है. ये A3 जो है ये 5 पॉइंट पर है, ये 8 पॉइंट पर है, ये 13 पर है, ये 6 पर है, ये 7 पर है. करेक्ट. ठीक है, सो दिस इज दी पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट. ठीक है, एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट. इसके बाद हुआ क्या है कि 3 लोग फाइनल खेले हैं. इसके बाद क्या हुआ कि 3 लोग फाइनल खेले हैं. ठीक है, A1, B2 एंड B6. तो उनका बेसिकली जो स्कोर है वो फाइनल्स की वजह से थोड़ा बहुत कम या बढ़ गया होगा. A1 have won 2 matches in the finals. That means +2 हुआ है. +2 हुआ है. तो at the end of second round, the scores would have been 10. Score 10 हुआ होगा. Yes. A3 तो as it is रह जाएगा. A3 में कोई चेंज नहीं आएगा because A3 is not playing the final. A5 is also not playing the final, so this will also remain same. What about B2? B2 ने एक मैच जीता है और एक मैच हारा है. करेक्ट. सो +2 from one match and -1 from one match. That means overall +1 हुआ है. That means it must be 12 at the end of round 2. करेक्ट. B6, B4 का तो कोई चेंज नहीं होगा. What about B6? B6 ने दोनों मैचेस हारे हैं, -1 and -1. That means 9 points. 9 points was there at the end of round 2. Correct. So these are the points at the end of round 2. We know how many matches they have played. ठीक है, so 10. तो अभी आप लोग देख सकते हैं हाईएस्ट एवरेज किसका है. हाईएस्ट एवरेज इसका ही होगा. 1.2 होगा इसका एवरेज हाईएस्ट, which is B2. Yes. Now, हाँ, अभी हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि whether this is adding up to 50 or not. ठीक है, सो एक बार चेक कर लो. This is 15, 23, 35 and 15. So this is adding up to 50. So which is as per our action. So actually we are doing this correct. Okay, we are doing this correct. Okay, I hope this is clear now. So very interesting set, I know. ठीक है, नहीं एवरेज टीम का नहीं बोला है भाई. एनी टीम, हाईएस्ट एवरेज पॉइंट्स फॉर एनी टीम. तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो है वो इसका है. इन क्वेश्चन में बैकवर्ड या फॉरवर्ड व्हाट्स गुड टू गो. सो वी नो कि फाइनल्स में क्या हुआ था, राइट. वी नो हाउ द फाइनल्स वेंट. ठीक है,
हम लोगों को मालूम है कि फाइनल्स में जो विनर है वो दोनों मैचेस जीता है, जो रनर अप है वो एक मैच जीता है, एक मैच हारा है, जो लूजर है वो दोनों ही मैचेस हार गए। ठीक है, तो उसके हिसाब से इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू डिटरमाइन व्हाट वाज व्हाट वाज देयर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ राउंड टू। ऑफ एनी टीम लिखा है, हाँ ऑफ एनी टीम लिखा है, तो ये जो 6 टीम है उसकी ही बात करेंगे ना। एनी टीम का मतलब जो पहली राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गया उसका तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, आफ्टर राउंड टू दीज आर द 6 टीम्स विच इज लेफ्ट। ठीक है, आफ्टर राउंड टू दीज आर द पॉइंट्स दैट दे हैव एक्यूमुलेटेड। ठीक है, दीज आर द पॉइंट दैट दे हैव एक्यूमुलेटेड। हाईएस्ट एवरेज किसका है, हाईएस्ट एवरेज किसका है? सो सबसे ज्यादा पॉइंट इसका 112 है। नंबर ऑफ मैचेस खेले 10 हैं, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 1.2। इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन आस्क्ड कि किसका है वो, तो आंसर वुड हैव बीन V2। ठीक है ना? तो with this we have any questions with this set, guys? I think this was a very interesting set, very looks like a very difficult set, looks like a very difficult set, but not that much. ठीक है, not that much, but हाँ उतना आसान भी नहीं, उतना आसान भी नहीं। ऑल क्लियर, ऑसम। ठीक है, तो चलो अभी एवरेज पॉइंट सिस्टम वर्ल्ड कप में मिला। एवरेज पॉइंट सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से अगर A1 जो है पहले ही बहुत सारे पॉइंट एक्यूमुलेट कर लिया है। ठीक है, मान लो पहले राउंड में 5 मैच खेला, 10 पॉइंट कर लिया, दूसरे मैच में 5 मैच खेला, 10 पॉइंट कर लिया, 20 पॉइंट पे अगर A1 पहले से ही रहता तो फाइनल्स के 2 मैचेस हारने के बाद भी A1 विनर हो जाता। B2 इज तो इंडिया फॉर श्योर। फाइनल्स में जाकर के हारना इंडिया से अच्छा कोई नहीं कर पा रहा है पिछले कुछ सालों से। ओके, सिद्धांत इज सेइंग इन फाइनल्स इन Q3 10 मैचेस की लीड की वजह से भी तो आगे सकते थे B2 डिस्पाइट लूजिंग बोथ द गेम्स, व्हाई डिडंट वी कंसीडर दैट पॉसिबिलिटी while solving it? So we know that at the end of the tournament, the team with the highest number of points, highest number of average points is the winner, right? So यहाँ पे looking at this table, we can clearly say that A1 is going to win this tournament, correct? A1 is going to win this tournament and no one else is. ठीक है, हम लोग को विनर पहले से ही डिसाइडेड है, हम लोग को ये भी पहले से ही पता है कि दिस इज हैविंग 1.0, दैट मींस दिस इज द रनर अप। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पहले से ही मालूम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पीपल आर आस्किंग फॉर टाइम आउट। भाई टाइम आउट, एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद फिर टाइम आउट करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अरेंजमेंट का बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ठीक है, उसको करते हैं, उसके बाद थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स चाय ब्रेक करेंगे यार, अभी चाय बनाना भी तो पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो पहले चाय बनेगा उसके पहले। ठीक है, तो जल्दी से एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक, चलेगा? अरे ब्रेकफास्ट सबको करना है यार, मेरे को भी करना है। ठीक है, टेंशन मतलब, मेरे को तो वैसे नहीं करना है, मेरे को आदत ही नहीं है ब्रेकफास्ट करने का, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अभी जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेट। ठीक है, भूखे पेट रहोगे तो जल्दी सामने आएगा। ठीक है, भूखे पेट रहोगे तो जल्दी सामने आएगा। अनु ब्रेकफास्ट गैंग। ठीक है, ये वाला करने के बाद हम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, चलेगा? ठीक है, नाउ जस्ट गो थ्रू द सेट वंस। ठीक है, गो थ्रू द सेट वंस एंड टेल मी व्हाट डू यू फील अबाउट दिस वन। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसके लिए 3 मिनट 3 मिनट का टाइम रखते हैं, वापस से 3 मिनट का टाइम रखते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ।
हाँ सौरभ, मैंने सुबह का स्लॉट दिया है, ठीक है, एंड आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली, ठीक है, तो मेरे लिए चैलेंज था वो भी। अप्रोच, लेट्स से अभी आई अज्यूम कि सबने पढ़ लिया है, अज्यूम कि सबने पढ़ लिया सेट, ठीक है, तो अभी डुएबल डुएबल जितने लोग बता रहे हैं, नाउ टेल मी, हाउ हाउ डू यू गाइस फील, आई मीन कैसे 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 अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन। लिख लिख के, वाह, सौविक ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। मैंने पूछा कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, एंड हम लोग लिख लिख कर अप्रोच करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लिख लिख करके अप्रोच करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आई थिंक जस्ट बाय गोइंग थ्रू द सेट यू मस्ट हैव रियलाइज कि कितने लोग हैं एक्चुअली हु आर सिटिंग एट दिस टेबल, ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग एट द टेबल, ठीक है। सो तो उसमें उसमें तो आई डोंट सी कि कोई चैलेंज होगा, ठीक है। So there are 8 people, Tamanna, not 7. ठीक है, 8 people, 4 male and 4 female. ठीक है, अभी if you see, if, let's just read the set. A post tournament party was organized for all the winners of a tennis league tournament. The winners of men's single मतलब एक कोई मेल है, women's single एक फीमेल है, men's double दो मेल, women's double दो फीमेल, and mixed double एक मेल और एक फीमेल, right? So 4 male and 4 female, they were seated around a circular table with all of them facing center of the table. Now there is further information which is given about them, ठीक है, further information which is given about them, ठीक है। तो डबल्स मतलब दो लोग खेलते हैं, अरे बट विनर ऑफ मिक्स डबल्स में दो ही लोग होंगे ना, वैसे तो कोई भी मैच, सिंगल मैच ये कैसे खेल रहा है, अकेला थोड़ी खेलेगा वो टेनिस वाला, ठीक है। सुबह सुबह का असर नहीं है यार ये। ठीक है, चलो अभी अभी यहाँ पे देखो, अब सर्कल तो बना नहीं सकते यहाँ पे, तो जगह नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, उसके लिए मैंने ये जगह छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो अभी ना, अभी इस क्वेश्चन में अपने को ये भी देखना पड़ेगा, इफ यू लुक एट दीज ऑप्शंस इट सेज, अगर तुम यहाँ पे पढ़ो कि स्टेट नंबर 3 पे और 4 पे इट सेज एग्जैक्टली टू वुमेन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर एंड एग्जैक्टली टू वुमेन सिट ऑपोजिट टू ईच अदर, तो इसमें ना सीटिंग पे भी काफी सारा रेस्ट्रिक्शन है। सो नाउ you'll be you'll be seeing that there are so many cases which is going to be made, ठीक है, तो यहाँ पे एक कोई केस नहीं बन रहा है, यहाँ पे मल्टीपल केसेस बने, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल केसेस बनेंगे। सो अगेन सौविक वाज बैंग ऑन व्हेन ही सेड दैट लिख लिख के हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग लिख लिख के पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ कंडीशन नंबर 1, ठीक, कंडीशन नंबर 1 के बारे में क्या, स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 से। मार्टिना हिंगिस, वन ऑफ द विनर्स ऑफ द मिक्स्ड डबल, सिट्स एडजेसेंट टू टू प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट जेंडर अदर देन हर मिक्स्ड डबल पार्टनर्स, ठीक है। तो रीजन वाई, आई मीन स्टेटमेंट नंबर 1, तो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे, करेक्ट। मार्टिना हिंगिस के बारे में देयर इज नो कंस्ट्रेंट, दिस ओनली थिंग व्हिच इज गिवन इज मार्टिना हिंगिस इज
present between two people of opposite gender. ठीक है, so इसके लिए क्या है कि we can place Martina Hingis anywhere, correct? So because this is the starting point, we can place it anywhere. ठीक है, we could have started from point number 5 also, correct, correct. So people are saying कि why not we start from point number 5. Point number 5 से भी start कर सकते हैं. माइक ब्रायन को हम लोग पैम सीवर के लेफ्ट में बिठा करके हम लोग आगे की कंडीशन उस हिसाब से मैच कर सकते हैं. ठीक है, उस हिसाब से भी कर सकते हैं. बट लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1. अगर मान लो मार्टिना हेंगिस सिट्स हियर, ठीक है, लेट्स आई एम जस्ट राइटिंग इट एज MH, ठीक है, एंड दिस इज अ फीमेल. ठीक है, so Martina Hingis sits here, and now she will be present in between two male pairs. Two male pairs. So यहाँ पे मेल है, यहाँ पे भी मेल है. ठीक है, मेल एंड मेल. ठीक है, अभी there are 8 pairs. Correct, 8 pairs. So if you see here, our statement number 3 and 4, which I highlighted. ठीक है, statement number 3 और 4 are actually the backbone of this question because they are determining कि कौन कहाँ पे बैठ रहे हैं. ठीक है, मेल फीमेल का पूरा जो सिटिंग अरेंजमेंट है actually are governed by state number 3 and 4. ठीक है, are governed by 3 and 4, right? So मेल एंड मेल, दिस इज तो क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है. मार्टिना हिंगिस अगर यहाँ पे बैठती है तो ये यहाँ दोनों मेल होंगे, करेक्ट. सो नाउ it says that exactly two men sit adjacent to each other and exactly two men sit opposite to each other. ठीक है, तो now अभी हम लोग के पास बहुत सारा केसेस बन जाए. ठीक है, अगर मेल मान लो यहाँ पर है, then and let's say adjacent वाला मेल यहाँ बैठता है. ठीक है, let's just say that adjacent वाला मेल यहाँ बैठता है, तो होगा क्या? The other male is not allowed to sit here because 3 लोग adjacent हो जाएंगे. ठीक है, here again this only one male player is left. He cannot sit here because there is one more condition कि opposite में भी होना चाहिए, करेक्ट. तो यहाँ पे possible नहीं है. Only place which is possible is this. यहाँ पे एक possibility है. ठीक है, यहाँ पे एक possibility है, यहाँ पे possibility नहीं होता because दो adjacent हो जाते हैं. ठीक है, तो only possibility is here. This was the case when we took male here, correct. Now let's just go and see what is the other case. So this is Martina Hingis. यहाँ पे मेल था, यहाँ पे मेल. This was so clear, correct. This was so clear. Now ठीक है, अभी हम लोग अगर एडजेसेंट भी इधर बिठाते हैं, ठीक है, लेट्स से इफ मेल इज हियर, तो जो दूसरा है वो यहाँ आ जाएगा, जो लास्ट वाला मेल है वो इधर आ जाएगा, करेक्ट. करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई चैलेंज, कोई डाउट नहीं? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. अभी आगे बढ़ते हैं. एक जो अभी हम लोग एडजेसेंट एडजेसेंट पे बिठा करके चेक किए थे. ठीक है, एडजेसेंट एडजेसेंट पे बिठा करके चेक किए थे. मेल हियर. अभी अगर लेट्स से ऑपोजिट पे भी बिठाना है, लेट्स से यहाँ वाले के ऑपोजिट में है, सो दिस इज अ मेल. ठीक है, यहाँ पे मेल है और इसके इसके बगल में वन मेल इज हियर. सो टू एडजेसेंट एंड वन ऑपोजिट. Two adjacent and one opposite. This is also satisfying our case. And similarly, the final case, Martina Hingis, male. ठीक है, so इसके ऑपोजिट हो गया है, इस पर इसके ऑपोजिट बिठा लेते हैं, इसके बगल में बिठा लेते हैं. ठीक है, करेक्ट. So these are the 4 scenarios which we are looking at. These are the 4 scenarios which we are looking at. Yes or no? If all these players are males, तो फीमेल हम लोग कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं? यहाँ पे फीमेल, यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर फीमेल. ठीक है, तो here also the female वाला condition is getting satisfied because 2 female are sitting adjacent and 1 is sitting opposite. Correct.
यहाँ पे देखते हैं फीमेल 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 and female. So here also this condition is getting satisfied that two are sitting adjacent and one is sitting opposite. What about this फीमेल फीमेल फीमेल? यहाँ पे भी हो रहा है सेटिस्फाइड, यहाँ पर भी हो रहा है सेटिस्फाइड. So all these are actually correct. So we cannot rule out anything till here. ठीक है, so all the four are possible till now. Correct. All the four are possible till now. So we have used our statement number 1, we have used statement number 3, 4. Now let's just see as to what other information we can use. ठीक है, अभी कह रहा है कि A Agassi, the winner of the men's single, does not sit adjacent to any of the male players. ठीक है, तो A Agassi जो है वो मेल प्लेयर्स के साथ नहीं बैठता है, तो मे बी ही कैन बी हियर, ही कैन बी हियर. ठीक है, टू पॉसिबिलिटीज. तो अभी वी कैन नॉट राइट एनीथिंग, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट प्लेयर. ठीक है, अभी इफ यू सी के वन स्टेटमेंट विच इज वेरी क्लियर. ठीक है, वन स्टेटमेंट विच इज वेरी क्लियर. ठीक है, इज आर स्टेटमेंट नंबर 7. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 7 क्या कह रहा है? Bob Bryan, who also won men's doubles, sits adjacent to players of opposite gender, but opposite a player of the same gender. ठीक है, opposite a player of the same gender. So now it is very. So Bob Bryan, if you see, अगर यहाँ बैठता है तो is it possible? दोनों अलग जेंडर के हैं बट यहाँ पे भी फीमेल है. So this is not possible for Bob Bryan. ठीक है, Bob Bryan के लिए what about this? If let's say Bob Bryan sits here, so this is also not possible. If can Bob Bryan sit here? Not possible. Can Bob Bryan sit here? Between two females and opposite to male. Correct? Between two females and opposite to male. So this is possible. So Bob is sitting here. Bob is sitting here. Correct? Then in this case, where can he sit? Female, and this is opposite to a female, so not possible for this place. Female and opposite to a male, so Bob will be sitting here. All right, Bob will be sitting here. Female and here, so Bob will be sitting here, and female opposite to a male, so Bob will be sitting here. So Bob का हमने place determine कर दिया है. ठीक है, in all these 4 scenarios. ठीक है, so we have used our statement number 1, we have used 3, we have used 4, we have used 7 as well. ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट अभी तक हमने यूज कर दिया है. ठीक है, अभी let's just go and check for Agassi. ठीक है, let's just go for Agassi because अभी हमारे पास थोड़ा clarity आ गया है. ठीक है, Agassi, the winner of men's single, does not sit adjacent to any of the other male players. ठीक है, तो वो अब मेल प्लेयर्स के साथ नहीं बैठेगा वो भी. ठीक है, तो कहाँ बैठ सकता है वो? तो यहाँ तो नहीं आएगा. यहाँ this is the only possibility. This is the only possibility for Andrew Agassi to sit. Yes. So Agassi will sit here. Correct. Agassi will sit here. Here in this case, Agassi will sit here. Here in this case, Agassi will sit here. Right. And here also Agassi will sit here. Right. Any doubts till now? Any doubts till now? No. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो हमने 1, 2, 3, 4 और 7 यूज कर लिया है. हमने 1, 2, 3, 4, 7 यूज कर लिया है. ठीक है, let's just look at statement number 5, 6 and 8, which are the 3 statements left. Mike Bryan, one of the winners of the men's double, sits immediate left of Pam Shriver, who also won women's doubles. ठीक है, तो Mike Bryan sits इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पैम शिवर. पैम शिवर का एग्जैक्ट लोकेशन अपने को पता नहीं है, फीमेल्स का भी हम लोग को उतना क्लैरिटी आया नहीं है. तो लेट्स जस्ट पार्क दिस इंफॉर्मेशन फॉर नाउ. लेट्स जस्ट मूव टू स्टेटमेंट नंबर 6 एंड उसके बाद फिर हम लोग वापस से रिविजिट कर लेंगे 5 वाले को. ठीक है, तो 6 में व्हाट इज सेइंग इज मार्टिना
क्या नाम है यार, Navratilova, who was Pam's river partner in the women's doubles, sits adjacent to Serena, who wins the women's singles. ठीक है, तो now it is saying कि दो women साथ में जो बैठ रही हैं, and who are they are Martina and Serena. The two female who are sitting together are Martina and Serena, correct? Martina and Serena, but we don't know about their exact position, correct? So this two female can be Martina Serena or Serena Martina, correct? Here also two Martina and Serena or Martina, correct? Martina Serena, Serena Martina. Martina Serena. Okay, I hope this is clear till now. ठीक है, तो दो फीमेल तीन फीमेल का हम लोगों को पोजीशन पता चल गया है. सो नाउ वी कैन इजीली से कि पैम स्टीवर कहाँ बैठेगी, करेक्ट? एम एस हो गया, मार्टिना हेंगिस हो गई. सो ओनली फीमेल विच इज लेफ्ट इज गोइंग टू बी पैम, is going to be Pam. So this is the position of Pam. In this case, this is the position for Pam. Correct? In this case, this is the position for Pam. And in this case, this is the position for Pam. Right? अरे एग्जाम पे आते हैं पहले. अब देखो, नाउ वी कैन वेरी इजीली यूज स्टेटमेंट नंबर 5. ठीक है, क्योंकि पैम का पोजीशन पता है अपने को, क्योंकि पैम का पोजीशन पता है अपने को, तो वी कैन वेरी इजीली यूज दिस स्टेटमेंट नंबर 5. ठीक है, माइक ब्रायन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पैम स्टीवर. माइक सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट पे अगासी बैठा हुआ है. सो दिस केस इज रूल्ड आउट. करेक्ट, दिस केस इज रूल्ड आउट. नाउ हम लोग रूल आउट करेंगे. इज दिस क्लियर? क्यों ये रूल आउट हुआ? ये रूल आउट हो गया, क्लियर है सब? हाँ, अब मजा आएगा बिल्कुल. ठीक है, ये रूल आउट हो गया. अभी पैम के लेफ्ट में बॉब बैठा है, यहाँ पर पैम के लेफ्ट में बॉब बैठा है, तो दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट, है ना? यहाँ पैम के लेफ्ट में अगेन अगासी बैठा हुआ है, दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट. दिस इज द ओनली प्लेस वेयर पैम के बगल में थोड़ा एक खाली जगह बचा हुआ है, जहाँ पे कि अपना माइक बैठ सकता है. सो नाउ वी हैव ओनली वन केस, वी हैव ओनली वन केस. ऑल द थ्री आर रूल्ड आउट, all the three are ruled out. So now it makes our task very easy. ठीक है, तो Mike is sitting here, Mike is sitting here, Agassi is sitting here, Bob is sitting here. The only one left is Leander Pace. So यहाँ पे Leander Pace आ जाएगा. ठीक है, so I feel that we have completed our table. टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दिया नहीं है. लिएंडर पेस वाज मार्टिना हेंगिस's पार्टनर इन मिक्स्ड डबल. सो हाँ, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को मालूम पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. सो सो so with this, I think we have completed our table. Let's just move to the questions now. Let's just move to the questions now. Okay, let's just move to the who sits third to the right of Pam Shriver. तो अभी तो now we know, तो अभी हम लोग आंसर कर सकते हैं. Pam Shriver third to the right, correct? Third to the right. Pam is sitting here. Third to the right is 1, 2, 3. Bob. Bob is the answer. ठीक है, Bob Bryan. Which of the following is definitely true? So Mike Bryan sits opposite to the player who won women's singles. ठीक है. One more thing which we have not mapped, which we could have done is कि कौन किस वाले टूर्नामेंट का विनर है. ठीक है, तो मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल एंड मिक्स डबल. ठीक है, ये हम लोग मिक्स डबल को MXD लिख देते हैं. ये भी हम लोग मैप कर सकते थे. while we have not done this, we could have done this because all the information are already there. ठीक है, so with this information and this table we can, I feel that, answer all the questions. I don't see any challenge now. तो हम लोग should we go to the next question now? अरेंजमेंट तो क्लियर हो ही गया. Any questions with this arrangement?
Any questions with this arrangement? No? ठीक है. All right. ठीक है, तो एक काम करते हैं, let's just break for 10-15 minutes. 15 minutes का break कर लेते हैं. 15, let's just break for 15 minutes, and then after that let's just come back. ठीक है, तो 11:30 11:03 हो रहा है, 11:20 पे मिलते हैं. ठीक है, 11:20 पे. All right. All right. So as we have been cruising along, I'll give you a very brief amount of time to solve some really interesting questions. आओ solve करते हैं. Okay. है ना. So मोहित is saying सर 2 चाय पी गया, अब घर वाले चाय नहीं दे रहे हैं. चलो कोई बात नहीं. एक घर वाले जब चाय नहीं देते हैं तो क्या होता है तुम्हें पता नहीं बाहर. Anyways, कोई बात नहीं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे. Let us begin and discuss a very interesting question जो आ गया है आपका बार चार्ट के ऊपर. चलिए शुरू करते हैं. Let us all take a quick 3 to 5 minutes and try and solve this as much as possible. By solving, I don't mean solving it entirely, but let's structure it, and then we'll quickly discuss as to how do we go about a question like this.
All right. So got a little hang of this question. Give me a sense of how, what do you feel about this question? Easy, difficult, moderate? What does it look like? I'm sure that we are expecting questions like this in CAT as well as in ZAT. A very decent moderate level question. अगर practice कर लिया है तो तेरे को ज्यादा easy लगने लगेगा. अगर इस type के questions तेरे को practice करें हो, इसीलिए हम बोलते रहते हैं variety, practice. तो आसान लगने लगेगा, नहीं तो मॉडरेट लगेगा, और कैट के अंदर थोड़ा सा एंजाइटी और ऐड हो जाता है. अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में. ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को प्रेजेंट किया है मैंने. आइए देखते हैं कि हाउ डू वी गो स्टेप बाय स्टेप. देखो, सबसे पहले तो हाउ डू वी गो अबाउट स्ट्रक्चरिंग इट. डू वी हैव अ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? एनीबडी हैविंग एनी इश्यूज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? गिव मी दैट सेंस फर्स्ट. ओके, सो आई थिंक दैट पार्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, बढ़िया. तो क्वेश्चन वाला अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट क्लियर है. Okay, so there are 5 people who are scoring across 4 semesters. Okay, and then we have to so for example, if I structure it like this, I'm sure you don't have a problem. So semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, and then there are people who are A, who are B, who are C, who are D, who are E. I am hoping that the structure is absolutely clear. मतलब structure wise तो I am sure maximum लोगों ने यही किया होगा. और remember one thing, the simpler structure is always the best. ठीक है, जो आप सिंपल स्ट्रक्चर यूज करते हो वही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन का स्कोप नहीं होता. मैं इसके अंदर रैंडम चीजें करूँ, S1 को अलग से लिखूंगा, S2 को अलग से लिखूंगा, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दैट इज डन. नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने वाली अपने पास ये है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा यहाँ पे दे रखा है अक्रॉस दीज सेमेस्टर्स. ओके, नाउ मेरे पास यहाँ पे 4 पॉइंटर्स हैं. मान लेते हैं सेमेस्टर 1 में टोटल जो स्कोर है, मतलब मैक्स स्कोर है P, यहाँ पे Q ले लेते हैं, यहाँ पे R ले लेते हैं, यहाँ पे S ले लेते हैं. तो इफेक्टिवली ये PQRS के अलोंग ही रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मतलब द मार्क्स स्कोर. How many of you are able to understand the data? I'm hoping that able to understand the data. For example, यहाँ पे and the data is legible also, right? तो 40% यहाँ पे दिख रहा है. For example, A देखें तो A का सेमेस्टर 1 में आपका अगर स्कोर देखेंगे तो वो 50% आ रहा है ना. सेमेस्टर यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखेंगे तो 55 आ रहा है. तो I'm hoping that data is absolutely clear. ठीक है, ओके. नाउ अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है. अब देखो, A scored equal marks in 2 of the 4 semesters. ठीक है, 4 में से 2 में इक्वल मार्क्स आ गया. ठीक, अभी इसको हम बहुत ज्यादा हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको भी रिजर्व में रखें. द डिफरेंस इन द मार्क्स स्कोर्ड बाय E in 2 of the 4 semesters was 20. तो अगर E के बारे में बात करें तो दो, अगर यहाँ पे भी फिर से देखें तो ये भी सिमिलर ही टाइप का है, पहला और दूसरा सिमिलर टाइप का इंफॉर्मेशन है. अच्छा, तीसरा वाला एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 800 इन सेमेस्टर 2. अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बनता है. अब मैं सेमेस्टर 2 के बारे में बात करूं, मतलब मैं ये रेड वाले जो यहाँ पे पिलर्स दिखाई दे रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ. यस नो, सेमेस्टर 2 मतलब ये रेड वाले पिलर्स की बात चल रही है. दो लोगों ने 800 से ज्यादा स्कोर किया है. तो अब यहाँ पे देखो, इस वाले इंसान का स्कोर कितना बन रहा है, इसका देख, इस वाले का 55% बन रहा है, इस वाले का 65% बन रहा है, इस वाले का 60 बन रहा है, इस वाले का कितना बन रहा है, यहाँ पे अपना 65-70 बन जा रहा है, और यहाँ पे कितना बन जा रहा है इस वाले, वापस इस वाले का भी 55 बन जा रहा है. तो ये पार्ट तो आई एम श्योर एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि वो दो लोग कौन से होंगे जो 800 से ज्यादा स्कोर करे होंगे. वो दो लोग कौन से होंगे जो 800 से ज्यादा स्कोर करे होंगे. ये तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, विच बेसिकली मीन्स दैट कि अगर सेमेस्टर 2 का टोटल क्यू है तो आप अपना, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो दो लोग एक कर जाएंगे एक्सीड, उसमें से एक अपना एक्सीड करेगा, डी एक्सीड कर जाएगा, और अपना बी एक्सीड कर जाएगा. करेक्ट है कि नहीं? डी एक्सीड कर जाएगा और बी एक्सीड कर जाएगा. ये वाला अपना 50 आ जाएगा. तो दो जो एक्सीड करेगा वो एक्सीड करेगा हमारा अपना, ये एक्सीड करेगा और ये एक्सीड करेगा, यही दोनों एक्सीड करेंगे. क्लियर है? अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा टोटल स्कोर यहाँ पे 8 क्यू है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0.65 क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 800. डू यू गाइस एग्री विथ मी? देख, 0.65 ज्यादा होना चाहिए, 0.7 तो डेफिनेटली ज्यादा हो. मेरे को लिमिटिंग कंडीशन यहाँ से मिलेगा. आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. तो अब यहाँ पे अगर क्यू हम कैलकुलेट करें तो क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 800 अपॉन 65 इंटू अनदर 100. दिस बिकम्स 20, दिस बिकम्स 13. मोटा मोटा देख, मेरे को एग्जैक्ट चाहिए नहीं, मोटा मोटा कहाँ पे आएगा क्यू का वैल्यू?
अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देखें तो ये 13 से 600 प्लस कुछ बनेगा, मतलब 60 प्लस कुछ बनेगा। 60 प्लस कुछ बनेगा तो ये वाला जो ओवरऑल नंबर है ये 1200 प्लस कुछ बनेगा। मतलब क्यू का वैल्यू 1300, 1400 ऐसा कुछ हो सकता है, 1500, राइट। 1200 समथिंग बनेगा। मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना भी नहीं है, उसमें अपने को टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ 100। व्हाई एम आई इवन गेटिंग इनटू कैलकुलेटिंग to the exact points, right? So that is something which I'm not going to do, which basically means कि मेरा Q का वैल्यू इसी आसपास होगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसमें। एग्जैक्टली अगर दो लोग 800 से ऊपर हैं, मतलब जो तीसरा वाला थोड़ा सा बदनसीब इंसान है जो 60% लेके 800 के नीचे आ गया है। अब 1300 का 16% तो ठीक है, 780 होता है जो 800 से कम है। लेकिन अगर मैंने 1400 ले लिया तो उसका 60% 800 से कम नहीं होगा, वो 800 से ज्यादा होगा, 840 हो जाएगा। विच बेसिकली मीन्स कि मेरा आंसर 1400 हो ही नहीं सकता है। क्यू हैज टू बी 1300। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? क्यू हैज टू बी 1300। ब्यूटीफुल, पहला पार्ट सॉल्व हो गया हम लोगों ने। एकदम मतलब एक मछली की आंख, मतलब नेक्स्ट लेवल। पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया। पहला वाला पार्ट जैसे ही क्लियर हुआ, सेमेस्टर 2 में सबके मार्क्स बता दे। ठीक है, जैसे ही पहला वाला पार्ट क्लियर हुआ, सेमेस्टर 2 में सबके मार्क्स बता दे। ठीक है, 1300 1400 आया था ना, उसमें से 1400 को चेक कर लिया। 1400 का 60% 800 से ज्यादा हो जाता है, तो अगर 1400 लेगा तो खेल खराब हो जाएगा। आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। 1300 हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था कि 1200 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। अर्श, आई एम होपिंग समझ में आएगा। तो 1200 से ज्यादा 100 के मल्टीपल में मैं 1300 1400 यही नंबर्स ले सकता हूँ। अच्छा, ये वाला पार्ट कर लिया, तो अब फटाफट बता दे कि यहाँ पे अपना कितना नंबर बन रहा था। यहाँ पे अपना कितना नंबर बन रहा था? यहाँ पे हमारा जो नंबर बन रहा था वो 55% बन रहा था। ठीक है, तो 13 5 और 13 5 65, तो ये 715 इधर बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन रहा है? 65, तो 65, तो ये अपना 65 और 78, तो यहाँ पे 845 बन जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद और अगला वाला क्या है? इस वाले में देखो, इस वाले में 60% है, तो ये वाला अपना सीधा सीधा 780 आ जाएगा। इस वाले में 70% है, तो ये सीधा सीधा अपना 910 आ जाएगा। और फाइनली ई में देखें तो ई में अपना कितना था? ई में अपना 50% था, तो वो 650 आ जाएगा। तो पहला वाला हम लोगों ने S2 तो फिल कर दिया। सिमिलरली सिमिलरली हम अभी 4 वाले को इवेल्युएट कर डालते हैं। 4 वाला भी सिमिलर इंफॉर्मेशन देखने में लग रहा है, तो 4 वाला भी सिमिलरली इवेल्युएट अपन कर सकते हैं। चलो आओ देखें 4 वाला कैसे इवेल्युएट करेंगे। 4 वाले में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा 990 दिया हुआ है, थोड़ा सा ऑड इन्फॉर्मेशन है, पर ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। तो अभी देख, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें देखूं तो इस वाले में मेरा यहाँ पे कितना बन रहा है? यहाँ 65 बन रहा है, यहाँ 60 बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है? यहाँ पे 50 बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है? इधर तो भाई अलग लेवल ठोका है, 70, है ना, ये देख लो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कितना बन रहा है फाइनली? यहाँ पे फाइनली कितना बन रहा है? 55। ठीक है, होपिंग के समझ में आ गया होगा। ठीक है, होपिंग के समझ में आ गया होगा। देखो, तो ये अपन लोगों ने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या नंबर बनेगा, चलो समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 990। तो वो 3 लोग कौन से हैं महानुभाव होंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 990 करेंगे? वो जरूर 70 वाला होना चाहिए, 65 वाला होना चाहिए और 60 वाला होना चाहिए। अग्री करते हो इस बात से? 50 और 55 वाले पीछे रह जाएंगे बिकॉज दे आर स्कोरिंग ऑन द सेम बेस। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल 0.6 के हिसाब से करूं और सेमेस्टर 4 का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं एस लूंगा। 0.6s, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 990। ठीक है, तो थोड़ा सा इनइक्वालिटी भी यहाँ पे प्रैक्टिस होता हुआ अपना, तो ये अपना कितना बन जा रहा है? s मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9900 डिवाइडेड बाई 6, तो ये अपना 1600 समथिंग आएगा। आई एम नॉट बॉदर्ड एग्जैक्टली क्या आएगा, कोई कुछ भी आ जाए। 1600 से ज्यादा आएगा तो मेरा आंसर 1700 हो सकता है, 1800 हो सकता है, 1900 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, इसी टाइप का कुछ बनेगा। ठीक, आगे चलो। अभी देखो, अभी 1700 1800 में कौन सा होगा? दोनों होगा, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगे, वो देखते हैं। अभिनव सिंह 0.7s लेंगे इतना सर, वो हाईएस्ट है। अभिनव देख, बहुत सिंपल है। अगर अगर ये वाला बंदा 990 क्रॉस कर जाएगा तो ये तो कर ही जाएगा ना, यस और नो? अगर फॉर एग्जांपल ये वाला बंदा कर जाएगा तो ये वाला तो डेफिनेटली कर ही जाएगा। कैन बी 1600 ऑल्सो, कैन इट बी 1600? कैन इट बी 1600?
1600 का केस कैसे बनेगा? देख ये 1600 से ज्यादा है ना, तो 1600 से ज्यादा है तो तुम मल्टीपल ही ले पाएगा, तुम मल्टीपल ही ले पाएगा, करेक्ट। अच्छा, तो अब देखो अगर मैंने 1700 लिया, 1700 लिया तब तो ठीक है, 1700 में यहाँ पे 60 पे 1020 बनता है विच इज गुड। एंड 1700 में अगर 55 पे लूँ तो कितना बनता है? 1700 में अगर 55 पे 75 85 और उसके बाद यहाँ पे अपना 935 बन जा रहा है ना। तो अगर मैं 17 के हिसाब से लूँ तब तो ठीक है, मतलब 990 के ऊपर, 990 के ऊपर फिट बैठ जा रहा है। 1800 में देखो, 1800 में अगर मैंने 60 पकड़ा तो खेल खराब हो जाएगा। 1800 में अगर मैंने 60 पकड़ा तो खेल खराब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 1080 आ जाएगा, तो 990 को एक्सीड कर देगा, तो 1800 को हम यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। 1800 को ब्लॉक करना पड़ेगा, तो 1800 अपना आंसर हो ही नहीं सकता है। एंड देयरफॉर द ओनली पॉसिबिलिटी हियर इज 1700। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो 1700 अपना ओनली पॉसिबिलिटी बन रहा है। ओहो क्या बात है, एक और सिक्सर, दो छक्के बैक टू बैक। अब देखो 1700 अगर अपना बन गया तो अब फटाफट ये नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फटाफट ये नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 55 से भी देख सकते हैं 1800 में, लेकिन 1800 पहले ही एलिमिनेट हो जा रहा है। 55 भी देख लो, 55 में अगर देखेगा तो सीधा सीधा इक्वल टू 990 आ जा रहा है, तो ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा 55% वाला। यस और नो? मतलब एग्जैक्टली इक्वल हो जा रहा है, मतलब जस्ट मेकिंग इट टू दैट लीग। तो उस लीग में अब 4 लोग आ जाएंगे अगर 1800 पकड़ेंगे तो। यस और नो समझ में आया कि नहीं? फटाफट, अगर 1800 पकड़ेंगे तो उस लीग में 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, बिकॉज 55% कितना हो जाएगा? 55% तेरा 990 ही हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो फुल ऑन बुल जाए, मतलब 1700 इधर अपना मस्त बैठ गया। अभी देखो 1700 बैठ गया तो अभी ये सारे एलिमेंट्स बताओ बताओ फटाफट। 1700 हो गया तो ये अपना कितना बन जा रहा है? ये अपना बन जा रहा है 85 5, और ये बन जा रहा है 102, तो 1105 पहला एलिमेंट बन जा रहा है। दूसरा एलिमेंट 1020 बन जा रहा है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट 850 बन जा रहा है। चौथा एलिमेंट 1190 बन जा रहा है। और आखिरी एलिमेंट तो अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था, 17 से 935 बन जाएगा। तो ये अपने 5 एलिमेंट्स बन गए। अब यू नो S1 S1 S2 S3 S4, ठीक है। तो अभी यूज कर लिया, आई एम होपिंग कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे चलते जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखो, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, मेरे पास यही दो सहारे हैं। इस दो सहारे में जितना जितना निकल जाए, नहीं तो फिर क्वेश्चन देख लेंगे। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ ए स्कोर्ड इक्वल मार्क्स इन 2 ऑफ द 4 सेमेस्टर्स, ओके। तो पहले वाले में ए ने कितना स्कोर किया है? पहले वाले में देख, अभी मेरे पास दो ही वेरिएबल बचा हुआ है, ये वाला वेरिएबल भी निपट गया है। तो पहले वाले में इसने कितना स्कोर किया है? 0.5 इंटू पी। यस और नो बोलो? 50% पे है, और पी तो 0.5 पी स्कोर किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? बहुत ही बढ़िया। तो ये 0.5 इंटू पी करेगा। अच्छा, और ए जो है अपना, वो सेमेस्टर 3 में कितना करता है? 65% ऑफ आर, तो 0.65 आर करेगा। आगे ना बोलो, 0.65 आर करेगा। अब देखो, अब इसको इसको समझ, इसमें बोल रहा है कि दो में इक्वल स्कोर है, दो में इक्वल स्कोर है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो 0.5 पी अगर 715 होगा तो पी कभी 100 का मल्टीपल होगा ही नहीं, तो S1 S2 इक्वल नहीं हो सकता है, करेक्ट ना? S1 S2 इक्वल नहीं हो सकता है। S1 S3 के साथ इक्वल हो सकता है क्या? S1 S3 के साथ इक्वल हो सकता है क्या? देखो 0.5 पी इज इक्वल टू 0.65 आर, हो सकता है, हो सकता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पी अपॉन आर का रेशियो कितना बन जाएगा? P अपॉन आर इज इक्वल टू 13/10 बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर 1300 लिया तो गेम गेम खराब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक तो 1300 ले लिया है ना, डिफरेंट मल्टीपल्स लेने हैं। यस और नो? तो 13 और 10 तो चांस ही नहीं है, ठीक है। 13 और 10 नहीं है तो खेल खराब हो जाएगा, तो मेरे को कोई और मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं 26 20 कर दूं, राइट, या 39 30 कर दूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यस और नो? अग्री विथ मी और नॉट? अग्री विथ मी और नॉट? तो मैं S1 और S3 को मैं इक्वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं S1 S3 में क्या पॉसिबिलिटी बनता है। अब एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पे ये है, ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ देखो पॉइंट नंबर 2 देखो। अब इसमें से मैं कैसे डिसाइड करूँ? मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम पॉइंट 2। द डिफरेंस इन द मार्क्स स्कोर्ड बाय ई इन 2 ऑफ द सेमेस्टर्स वर 20। अब 2 सेमेस्टर में उसका मार्क्स का डिफरेंस 20 है, तो मार्क्स का डिफरेंस 20 कहाँ से आएगा? देखो इन दोनों का तो 20 का डिफरेंस है नहीं, बेसिकली इन्हीं दोनों एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा, इन्हीं दोनों में से एक एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो मार्क्स का डिफरेंस 20 आना चाहिए। अब अगर तूने बड़े बड़े नंबर उठा दिए, मतलब तू यहाँ पे 2600 उठा दे रहा है,
ठीक है, इस वाले में तो 2600 उठा दे रहा है और इस वाले में 2000 उठा दे रहा है, तब तो तेरा खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि 20 का डिफरेंस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यस और नो? तो तेरे को उतने बड़े नंबर्स नहीं, तेरे को छोटे नंबर्स चाहिए। उतने बड़े नंबर्स लेने से 20 का डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि एक तो 100 का मल्टीपल भी अलग से लगा हुआ है, तो बड़े नंबर्स लेंगे नहीं हम यहाँ। तो अपन पी और आर वाला पॉसिबिलिटी भी अगर ड्रॉप कर देते हैं, मतलब अगर S1 S3 पॉसिबिलिटी भी ड्रॉप कर देते हैं, तो मेरे पास अब क्या पॉसिबिलिटी है? एक बार S2 S3 देखो। S2 S3 का पॉसिबिलिटी में अगर देखें तो 0.65 R इज इक्वल टू 715। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 715 डिवाइडेड बाई 0.65, अभी इंटू 100। अभी देखो ये 65 से एक बार 65 और एक 11 बार, तो R का वैल्यू आ जा रहा है मस्त 1100 यहाँ पे फिट टू कैलकुलेट होके। तो इसका मतलब आर भी निपटा डाला, आर भी निपटा दिया, आर निपटा दिया, आर आ गया 1100, एकदम फिट बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस वाले के अंदर। ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो पॉइंट नंबर 2 विल गिव मी एन अलार्म, यस और नो? अगर कुछ गड़बड़ होगा तो पॉइंट नंबर 2 शुड गिव मी एन अलार्म। ठीक है, तो दैट समथिंग इज वेरी, बिकॉज मेरे पास इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, यू नो हु विल रेज दैट अलार्म। सो आर इज 1100 इज समथिंग व्हिच इज आल्सो वेरी वेरी क्लियर। नाउ जैसे ही अपना 1100 आ गया, अब फटाफट ये नंबर्स बता दे। जैसे आ गया फटाफट अब ये नंबर्स बताओ। देखो सबसे पहला मेरा नंबर यहाँ पे, अगर हम देखें टॉक अबाउट सेमेस्टर 3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इफ ओनली यू ऑल्सो हैड सो मेनी कलर्स एज आई हैव, तो यहाँ देखो 65% बन जा रहा है, यहाँ पे 60 बन जा रहा है, यहाँ पे 55 बन जा रहा है ना? उसके बाद इधर कितना बन रहा है? ये बेचारा बहुत ही पीछे रह गया, 50 बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बन रहा है? ये तो 45 पे रह गया बेचारा। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? यहाँ तक ठीक चल रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आई एम रेडी टू गो अ लिटिल स्लो, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है, तो अब फटाफट निपटाते चलो। अब यहाँ पे 1100 के मल्टीपल पे हम लगाते चलते हैं इसको, ध्यान से देखो। 11 के मल्टीपल पे लगाएंगे तो 1155 एंड 66, तो ये अपना 715 दे देगा। यही दोनों इक्वेट करा था हमने वैसे भी। 60 के हिसाब से इधर 660 मिल जाएगा, यहाँ पे 55 एंड 5, तो यहाँ पे 605 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 50 है तो 550 मिल जाएगा, और यहाँ पे 45 है तो 495 मिल जाएगा। तो ये अपने सारे एलिमेंट्स भी खत्म। एंड आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर टू यू। तो ये सारे नंबर्स डाल दिए। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, द डिफरेंस इन द मार्क्स स्कोर्ड बाय ई इन 2 ऑफ द 4 सेमेस्टर्स, डिफरेंस इज 20। अब ये 20 का डिफरेंस देख किधर बनेगा, 20 का डिफरेंस देख किधर बनेगा। 4, अभी देख 935 में अगर 20 टू ऐड करता है तो 955 बनेगा। दिस नंबर इज नॉट, अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें देखें, अब यहाँ पे ई का स्कोर S1 में कितना है? ई का स्कोर S1 में सेमेस्टर 1 कितना परसेंट दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ई का स्कोर सेमेस्टर 1 में कितना परसेंट दिखाई दे रहा है? 70% ना। तो बेसिकली जो भी नंबर होगा उसका 70%, मतलब यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर देखें तो डिफरेंस बोल रहा है कि यहाँ पे अगर 20 का डिफरेंस है, तो अगर फॉर एग्जांपल 935 अगर हम लेते हैं तो या तो 955 हो जाएगा या 915 हो जाएगा। ये दोनों ही नंबर देख लो 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो ये दोनों ही नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इन दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों नंबर को ड्रॉप करना पड़ेगा। करेक्ट, ये दोनों नंबर को ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा 495 अगर होता है, 495 में मेरे पास दो पॉसिबिलिटी बनेगा, 475 बनेगा या 515 बनेगा। 475 भी देख लो, 6 टाइम्स 42 ये भी नहीं होगा, और ये 7 टाइम्स 49 ये भी नहीं होगा, ये भी गया। 650 के केस में बनेगा 630 और 670। अभी 630 ठीक लग रहा है, 630 ठीक लग रहा है, तो 630 अभी निपटा लो। अगर तूने यहाँ पे 630 डाला तो 0.7 ऑफ P is equal to 630, then P is equal to 900. Now this game is over. Now this game is over. अब P का वैल्यू 900 कैलकुलेट हो गया तो खेल में बचा ही क्या? यस और नो? P का वैल्यू 900 कैलकुलेट हो गया तो अब खेल में बचा ही क्या है? तो ठीक है, काफी ब्यूटीफुल गेम था ये वाला। ठीक है, ये वाला 630 हो गया। सारे के सारे वैल्यूज बता दे, सारे के सारे वैल्यूज आते हैं। सबसे पहला वाला वैल्यू अपना कितने नंबर पे है? पहला वाला 50% पे है। दूसरा वाला कितने परसेंट पे है? दूसरा वाला 60% पे है। तीसरा वाला अपना 55% पे जा रहा है। चौथा वाला कहाँ पे जा रहा है? चौथा वाला 65 पे जा रहा है, और आखिरी वाला 70 पे जा रहा है। तो 50% के हिसाब से अगर चलें तो पहला वाला नंबर अपना 450 पे आ जाएगा, बिकॉज हमने 900 ले लिया है ना? ये 50% पे है। अच्छा दूसरा वाला अपना 60% पे है, 900 पे जा रहा है तो 540 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला 55% पे जा रहा है,
तीसरा वाला 55 पे जा रहा है तो अपना 9 के हिसाब से 495 बन जाएगा। उसके बाद 65 पे चल रहा है ये आखिरी वाला, मतलब सेकेंड लास्ट, तो ये अपना 5 एंड यहाँ पे 4, तो फिर ये अपना 585। ठीक है, तो आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली, यहाँ तक सब आई एम होपिंग कि सबको समझ में क्लियरली आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? इज दिस सेट क्लियर टू यू और नॉट? एक बार फटाफट बताओ यार, मजेदार सेट था कि नहीं, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं? ऐसे सेट अगर एग्जाम में सॉल्व कर दें तो मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब सीधा ही डायरेक्टर बना दो, क्यों पढ़ा रहे हो मेरे को? ठीक, सीधा डायरेक्टर मेरे को क्यों नहीं बना देते? ठीक है, मैं तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में सॉल्व कर लेता हूँ। आई एम होपिंग कि मजा, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेट था। ठीक है, और एकदम फुल ऑन शर्लॉक वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा, मजा आ जाएगा, बता रहा हूं। ठीक है ना, फुल ऑन एकदम शर्लॉक वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा भाई, नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है। ओके, ईशान इज सेइंग वाज इट फ्रॉम ज़ैट? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो ये कहीं का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ना ज़ैट का है ना कैट का है। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स बैठाए हैं तब ये क्वेश्चन बना है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। नो आईएफटी, नो ज़ैट, कैट। ठीक है, नंबर्स बैठा बैठा के बनाया भाई, घर की खेती है ये। ठीक है, एनीवेज आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। मजा आया कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसे? ठीक है, ऐसा मजा मैं मैं और देना चाहता हूँ। लेट्स लेट्स सी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाऊं? तैयार हो? एक और इंटरेस्टिंग दिखाऊं? चलो, तैयार हो जाओ एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन के लिए। कितने लोग सेट थियरी में कॉन्फिडेंट हो चुके हैं? एक बार मेरे को गिव मी अ सेंस। तुम क्वेश्चंस लगा लोगे, क्वेश्चन मार्क करने में भी हेल्प करूं, आंसर ऑप्शंस मार्क करने में हेल्प करूं कि ए को कैसे मार्क करते हैं, बी को कैसे मार्क करते हैं, कि तुम मार्क कर लो? मार्क कर, ठीक है, चलो, वेरी गुड, मार्क कर लेना यार। ठीक है, मार्क करने में भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि देयर वाज अ स्टूडेंट, आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग सम रियली अमेजिंग स्कोर्स। उसने बहुत सारे क्वेश्चन सही करे, उसने ना मार्किंग गलत कर दिया था, एक बहुत अलग लेवल। तो उसने क्या करा कि पहले सॉल्व करता गया और पेपर पे अपने आंसर्स लगाते जा रहा था, पेपर पे। उसके बाद फिर फाइनली क्या हुआ कि उसने लास्ट के 10 मिनट में सब कुछ भरना शुरू किया। मतलब दिस वाज इन वन ऑफ द पेपर्स, क्वांट में या डीआईएलआर में किसी में किया था। एनीवेज, तो साथ साथ में करते चलना, जो क्वेश्चन सिक्योर हो गया ना उसको उसी समय मार्क कर। ठीक है, तो उस पॉइंट इन टाइम पे उससे बड़ा एसेट कोई नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक बार राघव एंड टू एंड चलना, और अगर फिर भी कुछ इशू होगा तो एक बार अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन सवाल आपका वेट कर रहा है। सेट थियरी 4 सेट क्लियर है अभी तक? 4 सेट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है? सेट थियरी यार जरूर प्रैक्टिस करके जाना। एक क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल सेट थियरी से बनता ही है। ठीक है, सेट थियरी में भी आज मैं आपको 4 सेट वेन डायग्राम एक दिखाने वाला हूँ, मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा मजा आएगा सॉल्व करने में। आ जाओ देखते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट वन very very interesting question from set theory. I'll give you another 5 minutes to structure your thoughts here. Let's take 3 to 5 minutes. Read the question, structure your thoughts. ठीक है, और ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि घर की खेती तो है ही, पर घर की खेती के साथ साथ में, ठीक है, अपना नारुतो जिंदाबाद है। लेट अस सॉल्व।
राइट। सो आई एम होपिंग के एक बेसिक सेंस लग गया होगा, सब लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। आर यू कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन नाउ? आई एम होपिंग दैट वन बेसिक सेंस ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर। चलो देख लेते हैं। इज देयर एनीथिंग इन द क्वेश्चन व्हिच इज नॉट क्लियर? ठीक है, इज देयर एनीथिंग इन द क्वेश्चन व्हिच इज नॉट क्लियर? फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज देयर एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर? ठीक है, एक बार फटाफट बताओ। ठीक है, ऑलराइट। सौभिक इज सेइंग नेम इज बैड। कभी कभी इससे भी खराब नाम आ जाता है सौभिक। सो मेरा एक ही पॉइंट होगा कि one thing which I really learned from this entire journey is that stop complaining and start doing. राइट। सो आई थिंक कई कई बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक नाम भी आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे नाम भी आ जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज समथिंग which I have learned through this entire journey कि बेसिकली जब when you complain about something और when you tell it to yourself कि यार ये तो इतना गंदा नाम है यार, शिट यार क्या हो गया, that negativity will start building upon you। और वो नेगेटिविटी तुम्हारा इतना बिल्डअप कर देगा कि इट विल रियली स्टार्ट क्लाउडिंग योर थॉट्स, एंड वहां से फिर कंफ्यूजन बढ़ने लगेगा। अ वेरी स्मॉल थिंग कैन रिजल्ट इनटू समथिंग हैजार्डस, राइट। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग, मतलब फर्स्ट सेंस टू यू इज कि यार आरसी आया, मजा आएगा। फर्स्ट थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मेरे पास एक आरसी है, ओहो क्या मजा आएगा, इसको पढ़ेंगे कुछ और अच्छा सीखने को मिलेगा। एंड स्टार्ट बिल्डिंग दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, एंथुसियाज्म। पहले एक थॉट ले, अरे कैसा घटिया नाम है, लीफ विलेज, सैंड विलेज, क्या होता है ये, एक पत्तों से भरा हुआ विलेज है, क्या है ये। सो दैट इज समथिंग विच इज, मतलब बहुत ही छोटी सी बात है पर पूरा का पूरा खेल खराब कर देगा। तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं, ठीक चलो देखते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। तो थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करो। जो भी लोग DILR कर रहे हैं, जितने लोग भी अच्छा कर रहे हैं और जितने लोग डिसेंट कर रहे हैं और जितने लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं ना, उनको DILR अच्छा लगता है। ये बहुत मेजर डिफरेंस। ठीक है, जो अच्छा कर रहे हैं, ऑनेस्टली तुम उसको पूछो, उसको अच्छा लगता है DILR करना। तुमको अच्छा लगता है तो तुम भी अच्छा करेगा, और तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम हर चीज में अगर थोड़ा सा एक नेगेटिविटी तुम्हारा आ जाता है ना, तो तुम्हें वहां से डिफिकल्टी आनी शुरू होगी। नाउ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। लेट अस सी। नाउ आफ्टर द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, निंजा कुड बी रेसिडेंट ऑफ मल्टीपल विलेजेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 विलेजेस हैं, दिख ही रहा है, और ये भी दिख रहा है कि मल्टीपल विलेज बोल दिया, तो कुछ लोग 1 में होंगे, कुछ लोग 2 में होंगे, कुछ लोग 3 में होंगे, कुछ लोग 4 में होंगे, इस टाइप का सिनेरियो बनेगा। तो सबसे पहले 4 सेट वेन डायग्राम अगर समझ में आ गया तो फर्स्ट स्टेप क्या करें? 4 सेट समझ में आ गया तो बढ़िया, मतलब फुल ऑन, मतलब एकदम मस्त अपना इधर वड़ा पाव स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, इधर अपना वड़ा पाव स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, मस्त। ठीक है भाई, वड़ा पाव बोलता हूँ ना, मेरे को ना मुंबई की याद आ जाती है। ठीक है, चलो आओ देख, लेट्स सी। बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है भाई। ठीक है, स्पेशली स्टेशन पे जो वड़ा पाव खाओ, क्या मजा होता है भाई। तुमने कभी लोकल स्टेशन के बाहर वड़ा पाव खाया है क्या? ठीक है, नेक्स्ट लेवल, बहुत बढ़िया, मजे आ जाते हैं भाई। ओके, अब देखो, इधर इधर वड़ा पाव के अंदर आ गए। ठीक है, आओ चलो चलते हैं। ओके, नाउ ये देखो, ये सिनेरियो ऐसा बन गया है, ये सिनेरियो ऐसा बन गया है। अभी यहाँ पे अपने पास क्या क्या चीजें हैं, कौन से विलेज हैं वो देख लेते हैं। अपने पास यहाँ पे 4 विलेजेस हैं, उन 4 विलेजेस को लिख डालो भाई। तो यहाँ पे लीफ है, स्टोन है, सैंड है, मिस्ट है, और कोई तो नहीं है, 4 ही है। नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम ओनली मिस्ट विलेज इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम ओनली सैंड विलेज। द नंबर ऑफ निंजास, अच्छा तो अभी फॉर एग्जांपल देख, इसमें 2 टाइप का डेटा है। क्वेश्चन तुमने एनालाइज कर लिया है, इसमें 2 टाइप का डेटा है। एक टाइप का डेटा ये है कि भाई ये लिख रखा है कि अपना एक तो रेशियो वाला डेटा है ना, और एक एब्सोल्यूट वाला डेटा है। ठीक है, रेशियो वाला जो डेटा है विल ओनली हेल्प यू क्रिएट वेरिएबल्स। ठीक है, जो एब्सोल्यूट डेटा है, दैट इज द डेटा विच विल हेल्प यू किल वेरिएबल्स। तो पहले तुम वेरिएबल किल करने के लिए वो चीजें देखो पहले जहां पे तुम्हारे पास एब्सोल्यूट डेटा है। फॉर एग्जांपल 8 बिलोंग टू ऑल 4। अब इसके लिए मैं वेरिएबल क्यों लूं, मैं यहाँ पे सीधा 8 लिख दूंगा, यस और नो। कौन सा नंबर कहाँ डालना है वो समझ में आता है कि नहीं, 4 सेट वेन डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है, ये सेल, ये ओनली 1 रिप्रेजेंट करेगा। ओनली 1 कितने कंपोनेंट्स होंगे, कितने सेल्स होंगे, ओनली 1 वाले। ओनली 1 वाले होंगे 4C1 इक्वल टू 4। ओनली 2 वाले होंगे 4C2 इज इक्वल टू 6। ओनली 3 वाले होंगे 4C3 अगेन विच इज इक्वल टू 4। एंड 4C4 वाले कितने होंगे,
एक ही। तो टोटल कितने सेल्स हो जाएंगे? देखो 10, 14, 15, टोटल कितने सेल्स हो जाएंगे? 4C, अच्छा वो अब 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर मैं स्टार्ट से ही सब में वेरिएबल्स डालने लग जाऊं तो मेरे कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे? बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो जाएंगे। मेरा काम है वेरिएबल एलिमिनेट करना, नहीं तो वो खेल फंस जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये डाल दिया। अच्छा, उसके बाद और मेरे पास क्या है? मेरे पास ये है कि 35 निंजास बिलोंग टू ओनली वन विलेज। अच्छा, तो ओनली वन विलेज के बारे में कुछ तो डेटा अपने पास हो तो मैं उसको फिर ढूंढूं। मेरे पास ओनली विलेज का, ओनली वन वाले का अपने को सम पता चल गया। ओनली वन के बारे में क्या दिया हुआ है, चलो देखें इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में एब्सोल्यूट डेटा के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम ओनली मिस्ट विलेज इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम ओनली सैंड विलेज। ओके, तो अगर मैं सैंड विलेज का x ले लूं तो मिस्ट विलेज 4x हो जाएगा। नंबर ऑफ निंजास ओनली फ्रॉम लीफ विलेज इज थ्राइस द नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम ओनली द स्टोन विलेज। तो अगर मैं इसको y ले लूं तो ये 3y हो जाएगा। ओनली वाले तो यही 4 होंगे और इसी का काउंट अपने को 35 लिया हुआ है। तो मैं इसको एक बार अगर ऐसे लिखूं 4x प्लस x 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 35 होगा। यस और नो? इसी दिन के लिए थोड़ा बहुत स्पेशल इक्वेशन पढ़ा था हम लोग, इसी दिन के लिए थोड़ा बहुत स्पेशल इक्वेशन पढ़ लिया था। ठीक है, आओ देखें। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, लेट अस सी ये होगा क्या। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 35 आ गया। तो अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है? मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं y को 0 ले लूं, x को 7 ले लूं। एक पॉसिबिलिटी ये है, करेक्ट ना? उसके बाद एक पॉसिबिलिटी, अब एक तो ये कैलकुलेट हो गया, तो ये वाला फिर अगर मैं एक साइड मूव कर दूं तो x और y के कोएफिशिएंट से मूव करने लगेगा। तो फिर एक ये पॉसिबिलिटी है कि x को 3 ले लूं, y को 5 ले लूं। और कोई पॉसिबिलिटी? इससे नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव चला जाऊंगा, तो इससे नीचे दो ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज में से कोई ना कोई एक तो इसमें फिट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ओके। नाउ यहाँ तक तो अपना सही चल रहा है। अब बाकी की चीजें देखते हैं, नाउ अब हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम लीफ विलेज, तो नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम लीफ विलेज अपने पास x और y के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है तो हम इसमें से कौन सा एलिमिनेट करें या फिर दो केसेस बनाएंगे। एक्स और वाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ढूंढो। ठीक है, एक्स और वाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो ढूंढो। ठीक है, ओके। देयर इज एटलीस्ट वन निंजा फ्रॉम द सैंड विलेज, सेम इज द केस विद स्टोन विलेज। तो एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं हो सकता, एक्स और वाई दोनों ही जीरो नहीं हो सकता। तो 7 0 वाला एलिमिनेट करो, 7 0 वाला एलिमिनेट करो। पर हम ऐसा सोचेंगे ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। if I am not thinking about that condition only, then it is incorrect. Okay, then it's not the right way of solving a problem. So now this is absolutely clear. So now I know that the value of x is 3 and the value of y is 5. तो मेरे कुछ जो वेरिएबल एलिमिनेट करने का जो मजा होता है ना सेट थ्योरी में, उससे ज्यादा मजा कुछ नहीं होता है लाइफ में। मतलब लाइफ में होता होगा, बट DILR वाले क्वेश्चंस में जो एलिमिनेट करने का मजा होता है, ये अपना 3 आ गया, ये अपना 12 आ जाएगा, यहाँ पे अपना 5 आ जाएगा, यहाँ पे अपना 15 आ जाएगा। भाई क्या नेक्स्ट लेवल एलिमिनेशन हो गया यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब और एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन कुछ है? और कुछ एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन दिख रहा है? हाँ, ये देखो यहाँ पे 32 दिख रहा है। ये एब्सोल्यूट वालों को पहले पकड़ो, यही अपने को गेम जिताएंगे। ये गेम जिताने का मादा रखते हैं ये एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन। देखो नाउ number of ninjas from any 3 villages, all except leaf, all except sand, all except stone, all except mist are in AP with the sum being 32. sum being 32 मतलब इसको हम इस टाइप से ले सकते हैं 8 minus 3d, 8 minus d, 8 plus d, 8 plus 3d। yes और no बोलो। सेट थियरी में, ठीक है, सेट थियरी में बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट ही नहीं करना है, बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। अब इसके अंदर देखो एपी घुसा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एपी घुसा हुआ है, थोड़ा सा भी अलजेब्रा भी स्पेशल इक्वेशन, छोटा सा स्पेशल इक्वेशन सॉल्व किया। ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो एक्सपेक्ट ही नहीं करना कि एकदम सीधा सीधा आ जाएगा, हम नंबर डालते जाएंगे, ओहो मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं हो। दैट इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो अगर हम यहाँ पे, मेरा अपना सम 32 है, तो यहाँ पे देखो सम 32 आ रहा है ना। अगर 4 नंबर्स अपने को एपी में लेने होते हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d लेते हैं कि नहीं? ये रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही यहाँ पे आ गया, अब बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस being the absolute difference in the number of ninjas from only sand and only stone। तो only sand और only stone का जो डिफरेंस है वो 2 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है
वो आ रहा है 2D, 2D इज इक्वल टू 2, तो D का वैल्यू 1 आ गया, तो इसमें पुट कर दे, तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा 5, 7, 9 और 11, ये 4 नंबर्स मिल गए, ऐसा और नो बोलो, कि ब्यूटीफुल तरीके से मिल गया। अब ये किसको कहाँ पे प्लेस करना है बस वो देख लेना, वो जरूरी रहेगा। ऑल एक्सेप्ट लीफ, ऑल एक्सेप्ट लीफ वाला पहला नंबर, तो इधर 5 ले लो। ऑल एक्सेप्ट सैंड, ऑल एक्सेप्ट सैंड, तो ये वाला नंबर 7 ले लो। ऑल एक्सेप्ट स्टोन, ऑल एक्सेप्ट स्टोन, तो ये वाला नंबर 9 ले लो। ऑल एक्सेप्ट मिस्ट, ठीक है, तो ऑल एक्सेप्ट मिस्ट, तो ये वाला नंबर 11 ले लो। 4 और नंबर्स अपने निपट गए। वेरिएबल्स हमको नहीं लेना पड़े, जहां तक नहीं लेना पड़े वहां तक हम वेरिएबल्स नहीं लेंगे। अब मेरे पास कोई और एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन, मेरे पास और कोई एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन है क्या? और कोई एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मेरे को वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। जितना जितना हद तक वेरिएबल एलिमिनेट करने की कोशिश हम कर सकते थे कर लिया, ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो यहाँ तक सही चल रहा है, यहाँ तक सही चल रहा है। अगर अभी इस सिचुएशन में एक चीज अपने को समझने वाली ये है, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर्स एपी में लिखे हुए हों, ठीक है, 4 नंबर्स अगर एपी में लिखे हुए हों, तो उस सिचुएशन में ये उसका रिवर्स सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है। तो इफेक्टिवली 4 में अगर लिखे हुए हों तो ये इसका रिवर्स सिचुएशन भी हो सकता है ना। रेस्पेक्टिवली लिखे या रेस्पेक्टिवली नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अमल, ठीक है। दो ही केस बनेगा। अगर रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है तो ऐसा मतलब नहीं कि 4 नंबर्स हैं और 4 प्लेसेस हैं, 4 फैक्टोरियल वेज बना रहे हो। दैट इज नॉट द केस। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है, 4 फैक्टोरियल केसेस नहीं बन जाएगा। Is that part clear to everybody or not? It will either be, जो 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, it will either be an increasing AP or a decreasing AP. Yes, no बोलो चैट। It will either be an increasing AP or a decreasing AP, ठीक है। तो बेसिकली मैं 5, 7, 9, 11 ले सकता हूँ, या मैं 11, 9, 7, 5 दो पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ। मैं अभी एक पॉसिबिलिटी लेके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी एक पॉसिबिलिटी लेके आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मेरे को नॉन इंटीग्रल नंबर्स मिल गए, यस और नो बोलो, अगर मेरे को नॉन इंटीजर नंबर्स मिल गए तो मैं दूसरे वाले में फ्लिप कर जाऊंगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अगर मेरे को नॉन इंटीजर तो सिंपल सी बात है ना कि नंबर तो नॉन इंटीजर होगा नहीं, ओके, क्लियर है। बाई नॉट डी इज इक्वल टू 2। राघव, थोड़ा सा एपी रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, फिर तभी क्लियर होगा। इन दोनों के जो बीच में जो डिफरेंस है वो 2D है, वो दिया हुआ है 2, तो 2D इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो D इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको तुम पुट करो। इज दिस पार्ट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ठीक है ना। तो गेम में एम्बिग्विटी नहीं आएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इस गेम में पॉसिबिलिटीज ना आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बट आर यू वेरी ऑफ ऑल दोस पॉसिबिलिटीज और नॉट? दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन द गेम, ठीक है। ऐसा ऐसा होगा नहीं कि हर जगह एक पॉसिबिलिटी मिलता जा रहा है, तुम एकदम क्रूज करते जा रहे हो, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। नाउ ये वाला हम समझ गए। इस वाले में जैसे मैंने बोला दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे, आइदर इंक्रीजिंग एपी बन जाएगा या डिक्रीजिंग एपी बन जाएगा, ओके। I'm hoping that this is clear to you. So absolute difference mentioned. So D is equal to 1 only, my friend. जो AP का जो डिफरेंस है, AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 minus 3 is equal to 2 है। तो अगर मैंने ये नंबर्स लिए 5, 7, 9 और 11, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है कि 2 लेना है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो मैं 5, 7, 9, 11 ले लूं, या मैं 11, 9, 7, 5 ले लूं। समझ में आया? तो मैं ये वाले केस के साथ अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हम होपिंग के समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। इस वाले में जिस टाइप के मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं उस हिसाब से किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रेशन रिवाइज करना है ना, थोड़ा सा प्रोग्रेशन रिवाइज करना। अच्छा, अब देखो, यश इस सेकंड वाले केस में D-2 हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस फिर भी 2 रहेगा ना यश। अरे एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात हो रही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन जब तक ध्यान से नहीं पड़ेगा नहीं बैठेगा दिमाग में। क्लियर है? यस और नो बोलो। एब्सोल्यूट डिफरेंस बोला है। अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 है, सिंपल सी बात है यार, अगर मॉड डी इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो तुम क्या लिखेगा? डी का वैल्यू सिर्फ 2 लिखेगा या -2 भी लिखेगा? अगर मॉड डी इज इक्वल टू 2 है, दैट मींस डी इज इक्वल टू 2 और डी इज इक्वल टू -2, बोथ केसेस आर पॉसिबल। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर। Aryan is saying AP के terms को how can we take it in the order you took? Aryan, revise the progression session. जो आपका starting kit में progression वाला session है, revise उसको एक बार revise कर, ठीक है। अपने आप से नहीं आएगा ये जो मैंने करा, it was not
इट वाज नॉट अ इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस स्टफ, इट वाज डिराइव्ड इंटेलिजेंस। मैंने पढ़ा हुआ है उसको, ठीक है, तुम भी पढ़ेगा तेरे को भी आ जाएगा। यहाँ से आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़े, चलो प्रोग्रेशन का भी टेस्ट लेना पड़ेगा रे बाबा, ठीक है, बहुत सारा लोचा लग रहा है मेरे को प्रोग्रेशन के अंदर, यहाँ पे प्रोग्रेशन के अंदर मेरे को थोड़ा लोचा लग रहा है लोगों का, ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं, है ना, चलो आगे चलते हैं। फिर सौविक आके बोलेगा कि सर बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था, ठीक है। उसके बाद सौविक पोल भी करा देगा कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चंस करे। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना, चलो अब लेट्स सी, ये वाला सही, यहाँ तक सही चल रहा है, यहाँ तक आई बुकिंग सबको समझ में आ गया होगा, ठीक, वेरी गुड। थोड़ा सा पढ़ लो प्रोग्रेशन, उसके बाद करें। अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, अब इसके आगे बढ़ने दो भाई, क्वेश्चंस बंद हो तो मैं इसके आगे बढ़ूं, ठीक है। यहाँ तक समझ लिया। अब मेरे पास कोई एब्सोल्यूट डेटा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब मैं इक्वेशंस या वेरिएबल्स लूंगा। देखते हैं। नाउ द नंबर ऑफ निंजास ओनली फ्रॉम द लीफ विलेज इज थ्राइस, ये वाला तो कर दिया था। नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम ओनली स्टोन एंड मिस्ट, okay, only stone and mist is twice the number of leaf, only leaf and sand। तो only leaf and sand वाला अगर x लेगा तो ये 2x दिया हुआ है, ओके। ninjas from only sand and mist, ठीक है, only sand and mist is twice the number of ninjas from only stone and leaf। तो only stone and leaf वाले का तुम्हारा only sand and mist वाला डबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी अपने को समझ में आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये वाले वेरिएबल्स समझ में आ रहे हैं? फटाफट बताओ, एक्स कहाँ से आ गया, रुक जाओ भाई, फिर से देखो, फिर से देखो। यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि एब्सोल्यूट क्लियर समझ में आ जाए। देखो अब अगर फॉर एग्जांपल इस वाले सिचुएशन को देखें तो अपने पास ये वाला इंफॉर्मेशन है, चलो आगे चलते हैं। ओके, ये वाला देखो। नाउ पहले ये वाले नंबर्स लिख डालते हैं। यहाँ पे 70 है, ठीक है, लीफ वाला, सैंड वाला 53 दिया हुआ है, स्टोन वाला 51 दिया हुआ है और मिस्ट वाला 67 दिया हुआ है। अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें एक स्क्रीन में आ गई हैं। ओके, नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम ओनली स्टोन एंड मिस्ट इज, ओनली स्टोन एंड मिस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम ओनली सैंड एंड स्टोन। तो ओनली सैंड एंड स्टोन वाला अगर x ले लें तो ये 2x ले लेंगे। आई एम होपिंग कि समझ में आ गया होगा। ये वाला हो गया। निंजास फ्रॉम ओनली सैंड एंड मिस्ट, निंजास फ्रॉम ओनली सैंड एंड मिस्ट is twice the number of ninjas from only stone and leaf। तो ये वाला अगर y हो जाएगा तो ये वाला 2y हो जाएगा, है ना? अच्छा, ओके, ओनली स्टोन एंड लीफ वाला भी। नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम एनी 3, ये भी आ गया। अच्छा, इस वाले के बारे में भी कुछ दिया होना चाहिए। तो नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम ओनली स्टोन एंड मिस्ट, ठीक है, ओनली स्टोन एंड मिस्ट वाला, नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम ओनली स्टोन एंड मिस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ निंजास फ्रॉम ओनली लीफ एंड सैंड। तो ओनली लीफ एंड सैंड वाला जो नंबर होगा, ओनली लीफ एंड सैंड वाला जो नंबर होगा, ये वाला तो हमने कर दिया। तो अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है अपने पास विच बेसिकली गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोन और सैंड वाला, ठीक है, स्टोन और सैंड वाला भी कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ ओनली स्टोन एंड मिस्ट, स्टोन एंड मिस्ट वाला तो अपन लोगों ने यूज कर लिया। ओनली मिस्ट एंड number of ninjas from only mist and leaf is twice the number of ninjas from only sand and stone। अच्छा, हाँ, ये वाला हो गया। तो mist and leaf ये वाला हो गया, is twice this number। तो अगर ये z ले ले तो ये 2z हो जाएगा। हो गया काम अपना, हो गया काम अपना। अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल्स बने हुए हैं? 3 वेरिएबल्स बने हुए हैं, 3 वेरिएबल्स बने हुए हैं और मेरे पास कितना इक्वेशन दिखाई दे रहा है? 3 वेरिएबल्स हैं और कितना इक्वेशन है? क्या बात है, एक और वेरिएबल बढ़ा भी देता तो सॉल्व कर लेते, ठीक है। लेकिन एनीवेज चलो, ज्यादा इतराना ठीक नहीं है। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है। नाउ, ठीक है, नाउ अमल सिंह सर ये एपी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 5 7 9 11, ओके। अब देखो नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज। अब यहाँ पे अगर मेरा टोटल 70 है तो मैं बोल सकता हूँ पहले वाले से x प्लस वाई प्लस 2z, ये टोटल 70 है। ये कितना हो रहा है? 15 11 36 8 अपना
26, 8, 34, 43, 50, तो ये वाला अपना टोटल 20 हो जा रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस 2z। अच्छा, दूसरे वाला स्टोन वाला देखते हैं। स्टोन वाले में अपना क्या हो रहा है, 2x प्लस वाई प्लस जेड। 2x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जा रहा है, यहाँ पे देख 5, 11, 16, 8, 24, 29, 36, टोटल 51 है, तो ये 15 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सैंड वाला देखो, इसमें x है और 2y है और z है। ये वाला नंबर कितना हो रहा है, 9 और 11, 20, 28, 33, 36, 53 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 9, 17 हो गया, 22 हो गया और 11, 33 हो गया और 36 हो गया, तो यहाँ पे 17 दे देगा। और फाइनली मेरे पास आखिरी वाला 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, यहाँ पे देख 9, 8, 17, 24, 29 और 12, 41, तो ये 26 हो जा रहा है। अब यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z आ गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं पहले वाले से यूज करूँ तो z का वैल्यू मेरा कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। दूसरे वाले से यूज करूं तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। और तीसरे वाले से यूज करूं तो y का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो अपना 7, 2 और 4 कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? तो यहाँ पे अपने को पिट्टू से इंटीजर मिल गया है, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, यस और नो? इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? ठीक है। आई एम होपिंग कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी डाउट चैट में पूछे गए हैं सारे आंसर्ड हो गए हैं, ठीक है। आई हैव नॉट लेफ्ट आउट ऑन वन, इवन वन क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द चैट एज डाउट, ठीक है। जितना भी टाइम लगे, बट आई एम होपिंग कि सेट थियरी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज अपने को करना, ठीक है। सेट थियरी के अंदर अपने को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए भाई। 3 सेट हो या 4 सेट हो, अपना एक सेट वाला क्वेश्चन तो निकलना ही निकलना चाहिए। इधर से अपने को 5 इंटू 3 15 नंबर गारंटीड चाहिए, ठीक है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी? ओके। इफ दिस वाज नॉट एन इंटीजर तो अपन इसको रिवर्स कर देते हैं। अगर मेरे को यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर मेरे को इधर इंटीजर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, निराश नहीं होंगे, दूसरे रास्ते चले जाएंगे, ठीक है। निराश नहीं होंगे, दूसरे रास्ते चले जाएंगे, ठीक है। एक बार घर पे दूसरा वाला रास्ता भी सॉल्व कर लेना, यस और नो? एक बार घर पे दूसरा वाला रास्ता भी सॉल्व कर लेना। क्लियर है, हाँ कि ना बोल? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक सही चल रहा है ना? आगे चलते हैं। ओके, नाउ आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक, यहाँ तक सही, सबको समझ में आ गया। एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिखाता हूँ, तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए? आई एम होपिंग कि सारे के सारे डाउट्स आंसर हो गए, मैंने सारे आंसर कर दिए हैं भाई, जो भी चैट में आए। तो सेट थ्योरी अपने को 5 इंटू 3 15 गारंटीड चाहिए। जितने भी लोग इधर बैठे हैं, ठीक है, दे विल साइन ऑन अ पेपर एंड गिव इट टू, कि भाई सेट थ्योरी में 5 इंटू 3 15 नंबर तो पक्का लेके आएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ना, ठीक है ना। तो ये वाला तो भाई अपने को पक्का चाहिए, मतलब फुल ऑन एकदम गारंटीड चाहिए। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हा, एक और क्वेश्चन, बाइनरी लॉजिक। आइए, एक बाइनरी लॉजिक का क्वेश्चन भाई अचानक से बीच बीच में अचानक से आ जाता है, एक दो सेशन, एक दो सीजन रुकता है, फिर अचानक से आ जाता है। आइए देखें, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। लेट अस ऑल टेक 2 से 3 मिनट, थॉट प्रोसेस अपना स्ट्रक्चर करो, फिर डिस्कस करते हैं।
ऑलराइट, चलो आओ देखें, लेट अस बिगिन। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मजेदार क्वेश्चन है ये वाला भी। आई एम होपिंग के ये कलरफुल वाला स्लाइड देख के थोड़ा सा, ठीक है, जो भी फ्रेशनेस अपन लोगों ने लूज किया है इन द लास्ट कपल ऑफ आवर्स आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन, थोड़ा सा रीगेन किया होगा। सो चलिए देखते हैं। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज व्हिच इज वन पीस से इंस्पायर्ड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों के बारे में मैं बता देता हूँ, यहाँ भी नेम्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। यहाँ भी नेम्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अच्छा कुछ लोग जिन्होंने ये देखा हुआ है उन्होंने मेरे को चैट में मैसेज किया कि सर जो हमने देखा हुआ है सीरीज उसी हिसाब से बता देते हैं, बता दो, उसके बाद देखना आंसर क्या आता है। ठीक है, जैसा सीरीज तुमने देखा उस हिसाब से बताओ, फिर आंसर देख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, ओ अच्छा आगे चलते हैं, लेट्स सी। नाउ ये बाइनरी लॉजिक वाला प्रॉब्लम कैसे करेंगे, देखो बाइनरी लॉजिक वाला प्रॉब्लम कैसे करेंगे। हमने कुछ इंटरेस्टिंग जो अपना क्वेश्चन है वो अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे अपने को करना क्या होता है, यहाँ पे अपने को ठीक है ना, चलो सॉल्विंग सर मनी हाइस्ट के ऊपर भी एक मनी हाइस्ट के ऊपर भी मेरे पास सेट है, आई शेयर दैट विथ यू गाइस। अभी देखो यहाँ पे अपने पास ग्रुप ऑफ 4 पायरेट्स, namely Luffy, Nami, Usopp, and Zoro. All of them are from different places, namely East, West, North, and South, not necessarily in the same order. Their expertise are among fighting, planning, storytelling, and leading. All the 4 have made 3 statements, and they are all alternators. So, pehla question, I'm hoping that you all know what are alternators. An alternator can go true, false, true, or can go false, true, false, right? So, this is how an alternator behaves, right? Now, अब मेरे को क्या पता कि कौन इसमें से कौन है, तो अपन एक काम करते हैं, हमको इफेक्टिवली बाइनरी लॉजिक में एनालिटिकल जो अपना रीजनिंग पजल होता है उसको हम बाइनरी लॉजिक के साथ कंपाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो लूफी, ठीक है, यहाँ पे लूफी, नामी, उसोप एंड जोरो, इन लोगों के अगेंस्ट में अपने पास 2 और मेट्रिक है। कौन कौन सा मेट्रिक है, एक तो कि वेयर आर दे फ्रॉम, राइट, सो द प्लेस, एंड देयर इज वन व्हिच इज एक्सपर्टीज, है ना। वैसे एक्सपर्टीज से तुम्हें क्या याद आया, आई एम श्योर यही याद आया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नाउ लेट्स सी। तो ऐसा कुछ तो सीन चल रहा है, ऐसा कुछ तो सीन चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो अभी देखो ये वाला सिनेरियो अपना ऐसा बन गया। अब देखते हैं, अब मेरे को पहले वाले का मालूम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ट्रू फॉल्स ट्रू लेके शुरू करता हूँ। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू लेके शुरू करता हूँ। इसमें एक ही इनपुट दूंगा, ठीक है, इसमें एक ही इनपुट दूंगा। वो इनपुट ये है कि असर्टिव वाले एफर्मेटिव स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, नेगेटिव स्टेटमेंट से स्टार्ट मत करो। फॉर एग्जांपल इसमें देखो नो 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 लिखा हुआ है, अगर मेरे पास ये पहले भी लिखा होता यहाँ पे तो मैं इससे स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, आई विल स्टार्ट विथ, बिकॉज इसमें नो में पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। एफर्मेटिव में एटलीस्ट कुछ तो अपने को डेफिनेट पता चलता है, तो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स ऑलवेज टू बी टेकन फर्स्ट। लास्ट वाले सेट थ्योरी में अपन लोगों ने देखा कि अगर तेरे को वेरिएबल्स कम करने हो तो जो अपना नंबर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है उसको प्रायोरिटाइज करो, तो तुम वेरिएबल एलिमिनेट कर पाएगा, नहीं तो तुम बहुत सारा वेरिएबल बना के उसके बाद बैठा रहेगा आराम से। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्रू फॉल्स ट्रू बन रहा है, तो अगर ट्रू फॉल्स ट्रू बन रहा है तो जोरो इज एन एक्सपर्ट इन फाइटिंग। ठीक है, तो ये जोरो इज एन एक्सपर्ट इन फाइटिंग। अच्छा, उसॉप इज फ्रॉम साउथ सी इज फॉल्स, नामी इज फ्रॉम साउथ सी, तो नामी इज फ्रॉम साउथ सी, तो यहाँ पे साउथ सी ले लेते हैं, तो यहां तक अपने को मिल गया। अच्छा, अगर अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें, नामी इज फ्रॉम साउथ सी, तो जोरो इज फ्रॉम साउथ सी वाला फॉल्स होना चाहिए। इफ आई अज्यूम दिस कंडीशन टू बी करेक्ट, जोरो फ्रॉम साउथ सी शुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, which means that Nami will be a true false true kind of an alternator. So Nami is saying now I am from West Sea. Now there is a contradiction because Nami I have established in the south. So therefore do you sense this contradiction or not? Do you sense this contradiction or not? Because ये बोला west तो ये बोला उसने, तो ये अपना खेल खराब हो जा रहा है। तो यहाँ पे true false true लेके काम नहीं चलेगा, तो false true false ले लेते हैं, false true false ले लेते हैं, false true false ले लेते हैं। अभी देखो अब इसमें ट्रू वाला क्या है, उसॉप इज फ्रॉम साउथ सी, तो उसॉप अपन साउथ ले लेते हैं। जोरो इज एन एक्सपर्ट इन फाइटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे फाइटिंग नहीं होगा। ठीक है ना। जितने लोग भी ये सीरीज देख के आंसर कर रहे थे उन्होंने सबसे पहली गलती यहीं पर कर दी है। ठीक है, ये नॉट फाइटिंग, तो इसको उसी हिसाब से बनाया गया है प्रिय मित्रों, ताकि आप सीरीज देख के आंसर ना कर पाए। ठीक है, इसमें सिर्फ इसमें जो पात्र और जो घटनाएं हैं वो काल्पनिक हैं।
समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो ये अपना अपना नॉट फाइटिंग आ गया इधर। नामी इज नॉट फ्रॉम साउथ सी, वो तो एनीवेज अपने को पता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो ये वाला सही समझ में आया। ओके, नाउ ये फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया। उसॉप इज फ्रॉम साउथ सी अगर ट्रू है, उसॉप अगर साउथ सी ट्रू है, तो जोरो फ्रॉम साउथ सी फॉल्स होगा। उसॉप इज फ्रॉम साउथ सी अगर ट्रू, तो ये फॉल्स होगा, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू आ जाएगा। तो उसॉप इज एक्सपर्ट इन लीडिंग, तो उसॉप इज एक्सपर्ट इन लीडिंग, ठीक है। एक और यहाँ पे आ गया, एक और यहाँ पे आपको सीरीज देखने वाले फिर से एक और, ठीक है, एक और लगा सीरीज देखने वालों को, तो यहाँ पे एक लीडिंग आ जाएगा, ठीक है, एक और झटका। नामी इज फ्रॉम द वेस्ट सी, तो नामी इज फ्रॉम द वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, यहां तक अपने को मालूम चल गया। अभी इसमें देखो, लूफी इज फ्रॉम द साउथ सी, लूफी इज फ्रॉम द साउथ सी, या साउथ सी तो ऑलरेडी अपने लोगों कर दिया, तो ये फॉल्स ही होगा। तो यहाँ पे फिर से फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, यस और नो। तो लूफी इज एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग, तो ये अपना स्टोरी टेलिंग आ जाएगा यहाँ। लूफी इज फ्रॉम साउथ सी, तो जोरो इज फ्रॉम नॉर्थ, तो जोरो इज नॉट फ्रॉम नॉर्थ, सो देन लूफी मस्ट बी फ्रॉम द नॉर्थ सी, तो रिमेनिंग अपना ईस्ट सी से हो जाएगा। सार्थक इज सेइंग व्हाई लूफी फॉल्स। सार्थक, लूफी इज फ्रॉम साउथ सी फॉल्स होगा ना, साउथ सी अपने ऑलरेडी डिटरमिन कर लिया है कौन है, उसॉप है, तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। लूफी साउथ सी से नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ये अपने मैप कर दिया। अब देखो, जैसे ही ये वाला काम हो गया, ये वाला जैसे ही काम हो गया, तो फाइट अपना इधर नामी पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, फाइट नामी पे शिफ्ट कर दो। तो बचा कौन सा, जोरो के लिए क्या बचा, जोरो बेचारा प्लानिंग करेगा, ठीक है। इसमें से इसमें से अगर तुमने देखा हो, ठीक है, इसमें से अगर तुमने देखा हो, तो क्वेश्चन ऐसे बनाया गया है कि एक्चुअल सीरीज में जो जो भी इनके एक्सपर्टीज हैं वो उसके एक्सपर्टीज से मैच नहीं हो रहे हैं, तो सीरीज के बेसिस पे कुछ मत करना लाइफ में, ठीक है। वो सिर्फ यहाँ पे पात्र डाले गए हैं और उसी तरीके से प्लान किया गया कि एक भी सही ना लगे अगर तुमने उस हिसाब से किया तो। ठीक, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। एक भी नहीं लगेगा, एक भी नहीं लगेगा, ठीक है, समझ रहा है ना। अगर चार हैं और चारों के चारों गलत हो जाएं, ठीक है, तो डिरेंजमेंट होता है, डिरेंजमेंट ऑफ 4 इज इक्वल टू 9, वन आउट ऑफ दैट 9 पॉसिबिलिटीज इज दिस, ठीक है, जो यहाँ पे आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। थोड़ी प्लानिंग लगती है भाई क्वेश्चन बनाने में, ऐसा नहीं बन जाते हैं, आओ देखें। पर पर क्वेश्चन बनाने वाला प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। इफ यू आर फ्री सम टाइम आफ्टर कैट, we'll sit down and we'll discuss how to create question if you are interested। मतलब I really enjoy this process। now जोरो देखो, जोरो देखो, अभी अभी बाकी तो अपन हो गया है, अभी देख लो, लूफी हैज नो एक्सपर्टीज इन स्टोरी टेलिंग, तो ये क्या हो जाएगा, लूफी तो स्टोरी टेलिंग कर ही रहा है, तो ये फॉल्स होगा। नामी हैज नो एक्सपीरियंस इन एक्सपर्टीज इन लीडिंग, ये ट्रू होगा। उसॉप इज नॉट फ्रॉम साउथ सी, ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे एकदम सही बैठ गया। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। तो बाइनरी लॉजिक कैसे करना है, केसेस बनाने हैं, केसेस वैलिडेट डिवैलिडेट करना है, अपना सिचुएशन बिल्ड हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, है ना, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट। ओहो क्या बात है, बहुत ही बहुत ठीक, क्लियर, समझ में आया। चलो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ आई हैव टू सी इफ इज इफ हिमांशु इज अराउंड। हिमांशु, आर यू देयर? सो वेरी वेरी क्विकली, ठीक है, अभी भाई रुक जाओ भाई, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बाद ब्रेक मत मांग, ठीक है। चलो 5 मिनट का वॉशरूम ब्रेक, और वॉशरूम ब्रेक में जाने से पहले, ठीक है, वॉशरूम ब्रेक में जाने से पहले भाई फटाफट एक काम करो, ठीक है, वॉशरूम ब्रेक में जाने से पहले फटाफट एक काम करो, एक होमवर्क क्वेश्चन नोट करके जाओ यार, ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। एक होमवर्क क्वेश्चन नोट करके जाओ यार, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो नोट करके जाओ फटाक से, ठीक है, फटाफट नोट करो, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, ये वाला देखो, नोट कर लिया, नोट करो यार फटाफट। ओके, वैसे तो वील शेयर द डेक, बट फिर भी तुम ले लो, मतलब अगर तुमको बिल्कुल इसके बाद करना होगा। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर दिस। देखो भाई, मैं पोज करता हूँ राघव यार, फोटो लोग अच्छी लेते नहीं है, तो फिर मैंने पोज करना बंद कर दिया है। कोई अच्छी फोटो नहीं ले रहा है, तो मेरे को आई डोंट वांट टू डू इट, ठीक है। चलो आओ देखते हैं।
आओ देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला देख लेना, ये वाला जो, ठीक है, बाइनरी में हमेशा ऑल्टरनेटर लेना है। सौम्या, क्वेश्चन में लिखा होगा कि ऑल्टरनेटर लेना है कि ट्रूथ टेलर लेना है, समझ में आया? ऑल्टरनेटर लेना है कि ट्रूथ टेलर, अपनी मर्जी से नहीं लेना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट कैट का क्वेश्चन है, इसमें इसमें नो क्लेम्स ऑन कैट क्वेश्चन, एब्सोल्युटली नो क्लेम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कैट में आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन आईएफटी में भी आ चुका है, कैट में आया है, सिमिलर आईएफटी में भी आया है, तो दो जगह आया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है तेरा, ये वाला क्वेश्चन बनता है दो टाइप की वैरायटी से। बेसिकली इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है अपना लाइन ग्राफ, इसमें देखने को मिल रहा है तुमको लाइन ग्राफ, और उसके अलावा थोड़ा रेशियोज है। रेशियोज वाला जो वर्किंग है ना, अप्रोक्सीमेशन वाला वर्किंग हो गया या रेशियोज वाला वर्किंग हो गया, ठीक है, वो ये सारे के सारे जो वर्किंग है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। रेशियोज लाइक फॉर एग्जांपल, इफ a by b इज लेस देन 1, तो अगर सेम नंबर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है, सेम नंबर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा। रेशियो कंपैरिजन के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, कुछ क्वेश्चंस उस टाइप के भी बनते हैं थोड़ा सा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है रेशियो कंपैरिजन अप्रोक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एक बार ट्राई जरूर करना। इसको भी एक बार अलग से अपन डिस्कस करेंगे वंस यू हैव ट्राइड इट, ठीक है। तो let us all take a quick 5 minute break, come back in 5 minutes and we'll continue from here on. All right. So we saw some DI sets as well. ठीक है, अब 1 मिनट बाकी है, नहीं यार 1 मिनट ओवर हो गया है, 12:33 पे 5 मिनट हो गए। ठीक है, 1 मिनट अभी बाकी नहीं, 1 मिनट ज्यादा हो गया। हाँ, ब्रेक के बाद हम लोग शकल बदल कर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस से एलआर की तरफ थोड़ा सा टाइम देते हैं। ठीक है, एलआर वी सॉ इन एलआर वी सॉ वी स्टार्टेड विद गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वी सॉ सॉरी रूट्स एंड नेटवर्क, फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट, फिर हमने एक अरेंजमेंट पे क्वेश्चन किया। नाउ विल बी सॉल्विंग वन सेट ऑन शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूलिंग करेंगे, शेड्यूलिंग के बाद हम लोग एक सेट करेंगे विच इज ऑन सिलेक्शन, एंड फाइनली वन विच इज बेस्ड ऑन पजल्स। ठीक है, सो ये तीन है अभी विच वी आर गोइंग टू डू, वेरी इंटरेस्टिंग सेट्स। ठीक है, तो let's begin. Okay, let's begin. So I hope everyone is back now. ठीक है, I hope everyone is back now. ठीक है, all geared up, awesome. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। just go through this question once. ठीक है, अगेन हम लोग टेनिस, पिछला क्वेश्चन भी हमने एलआर में टेनिस पे ही किया था। नाउ अगेन वी आर सॉल्विंग दिस ऑन टेनिस। तो जो लोग टेनिस फैंस हैं उनके लिए आई थिंक काफी मजा आ रहा होगा, उनको उनको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ रहे होंगे, नाम्स में भी डिफिकल्टी नहीं आ रही होंगे। ठीक है, बट जो लोग टेनिस नहीं फॉलो करते उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है विद द नेम्स, बट आई थिंक नहीं, क्रिकेट में कौन बोलता है स्कोप नहीं है यार। वी हैव वन क्वेश्चन ऑन क्रिकेट एज वेल। ठीक है, तो हम डोंट डोंट लूज फेथ। ठीक है, ये हम लोग वैसे भी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। लेट्स जस्ट टेक 2 to 3 minutes। ठीक है, आई थिंक 2 to 3 minutes इज मोर देन फाइन। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग इस पे स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। 2 से 3 मिनट में पढ़ो एंड उसका जस्ट टेल मी व्हाट डू यू फील अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या लगता है, इजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है? हाँ, ये तो है केशव, आई थिंक जनरली क्रिकेट के ऊपर नहीं बनाते हम लोग सवाल। ठीक है, बट चलो ठीक है, 2 मिनट का टाइम लो, जल्दी से पढ़ो और बताओ।
ओके, आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा लोगों ने। आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया सबने। क्वेश्चन पढ़ लिया है क्या? यस केशव, आई ऑल्सो फील द सेम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया है। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ के क्या क्या समझ में आया? मतलब मॉडरेट, मॉडरेट, कुछ लोग मॉडरेट कह रहे हैं। ठीक है, मेजोरिटी जनता मॉडरेट कह रही है। ओके, डूएबल। ओके, तो इसमें once you go through this question you realize that you have to find out two things, right? One, that who is practicing on which day, right? Who is practicing on which day, and the other is how, for how much time, right? So these two things we have to find out using these information, right? Once that is done, we'll be able to solve this question. Yes, so I think क्या क्या अप्रोच रहेगा? हाउ डू यू फील? कैसे जाना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? कैसे जाना चाहिए? हाउ शुड यू गो अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? टेबल बना लेंगे, बिल्कुल सही, नेम्स को फिक्स करके। ठीक है। Also, if you notice one thing here, that there are four friends, ठीक है, and lawn tennis है, that means two people will be playing every day. Two people will be playing every day, right? So that means what is the number of pairs that you can made out of these four pairs? कितने pairs बनेंगे? 4C2, 4C2, that means six pairs बन जाएंगे, 6 pairs, and they are playing from Monday to Saturday, right? So that means 6 days, 6 pairs. 6 days, 6 pair. Each day a different pair, right? So थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ से ही मिल गया है। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ से ही मिल गया है। तो तो आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट आवर सेट। ठीक है, एक बार जल्दी से सेट पढ़ते हैं और उसको जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फोर फ्रेंड्स, जोकोविच, फेडरर, शारापोवा, नडाल, practices lawn tennis from Monday to Saturday every week. Exactly two friends practice every day. A different pair practices on each day of the week, and no two pairs practice for an equal number of hours during a week. ठीक है, तो यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच एनी पेयर प्रैक्टिस इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, देन देयर आर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होगा कि देयर बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अभी अपने को देखना है कि कौन सा पेयर कब कब खेल रहा है, राइट? सो so what are the possibilities of the pairs? One pair can be DF, Djokovic and Federer, Djokovic and Sharapova, Djokovic, Nadal, right? Federer, Sharapova, Federer, Nadal, and Sharapova, Nadal, right? These are the 6 pairs. These are the 6 pairs. Now it is given that Djokovic does not practice on Monday. ठीक है, तो Djokovic does not practice on Monday, and he does not practice on any 2 consecutive days. So we cannot use this information directly. ठीक है, so let's just park it somewhere and let's just move to statement number 2. ठीक है, अभी तो यूज नहीं कर सकते हैं, we don't have enough information. Statement number 2 बोल रहा है the number of hours for which Nadal practices on any day is a multiple of 3, right? Any day is a multiple of 3. ठीक है, Sharapova practices on 3 consecutive days but not on Monday. ठीक है, 3 consecutive days but not on Monday, so that could be TWT or WTF or TFS, right? Anything. But if we see that 1 and 3, if we see 1 and 3, right? If we see 1 and 3, so it says that here Djokovic cannot be there. That means there are 3 possibilities for FS, FN, and SN. It also says that Sharapova also does not play on Monday. That means there is only one possibility left, which is F and N, right? If we combine 1 and 3, we can find out that on Monday, Federer and Nadal are going to play, right? Federer and Nadal are going to play. अभी इसमें एक और इंफॉर्मेशन है that Sharapova practices on 3 consecutive days. ठीक है, 3 consecutive days. तो 3 consecutive days अगर लेट्स से यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, एंड वी ऑल्सो नो दैट जोकोविच डज नॉट प्रैक्टिस ऑन एनी 2 consecutive days. ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज पे जोकोविच प्रैक्टिस कर रहा होगा, बिकॉज यू सी देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल.
एक दो तीन, this is the only possible way. This is the only possible way. That means Djokovic has to be on Tuesday, Thursday, and Saturday. Yes. अभी शारापोवा if let's say Tuesday, Wednesday और Thursday को आती है, let's say DS, so यहाँ पर DS will get repeated. So that means this is not possible. This is not possible for Sharapova to practice on Tuesday, Wednesday, and Thursday. Okay, so this is not possible. So and is Tuesday, Friday, Saturday possible? Again, DS will come twice. So this is also not possible for Sharapova. That means for Sharapova to practice on 3 consecutive days, there is only one possibility, which is Wednesday, Thursday, and Friday. Right? Wednesday, Thursday, and Friday. Correct? Wednesday, Thursday, and Friday. Clear? यहाँ तक clear है? यहाँ तक clear है? अच्छा, ये वाला रिपीट, ठीक है। तो ये FN तक क्लियर था, दैट मंडे को फेडरर और नडाल खेल रहे हैं, यहां तक क्लियर था, ठीक है। अभी अभी एज पर योर स्टेटमेंट नंबर 1, इट सेज दैट he does not practice on 2 consecutive days. Djokovic does not practice on 2 consecutive days. इसका मतलब Djokovic will have to practice on Tuesday, Thursday and Saturday. Tuesday, Thursday and Saturday. Yes, Tuesday, Thursday, Saturday को प्रैक्टिस करेगा। अभी सारापोवा के बारे में अगर देखो तो इट सेज दैट सारापोवा प्रैक्टिसेस ऑन 3 consecutive days, ठीक है। तो 3 consecutive days could be any 3, ठीक है। मंडे, वेंसडे, थर्सडे हो सकता, सॉरी मंडे तो हो ही नहीं सकता है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे भी हो सकता है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो सकता है, या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है। दीज आर द 3 possibilities. These are the 3 possibilities for Sharapova, ठीक है। If let's say Sharapova practices on Tuesday, Wednesday and Thursday, so she will be playing with Djokovic on Tuesday also, she will be playing with Djokovic on Thursday also, which is not possible because every day there is a new pair which is practicing. So this is ruled out. Tuesday, Wednesday, Thursday को Sharapova cannot practice. Thursday, Friday, Saturday को Sharapova cannot practice because of the same reason, because Thursday or Saturday को again she will be playing with Djokovic only. So this is again not possible. So the only possibility which is left for Sharapova is Wednesday, Thursday and Friday, right? Wednesday, Thursday and Friday. I hope this is clear now. I hope this is clear now. ठीक है? Okay. All right. मंडे वाला केस एक बार रिपीट करना। ओके, मंडे वाला तो सबसे ही आसान था। तो मंडे को कौन कौन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है? मंडे को जोकोविच प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो ऑल दीज आर रूल्ड आउट। मंडे को सारापोवा इज नॉट प्रैक्टिसिंग, सो दिस इज आल्सो रूल्ड आउट, दिस इज आल्सो रूल्ड आउट। ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, एफ एंड एन, सो दैट इज व्हाई दे आर देयर। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। Now see what else information is given. So we have used our information number 1, we have used information number 3. This is about hours of practice, ठीक है। नडाल जब भी प्रैक्टिस कर रहा है तो 3 के मल्टीपल पे करता है। नडाल डज नॉट प्रैक्टिस ऑन वेंसडे एंड सैटरडे, ठीक है। सो नाउ वी हैव वन मोर इन्फॉर्मेशन, नडाल डज नॉट प्रैक्टिस ऑन वेंसडे एंड सैटरडे। तो वेंसडे को नडाल नहीं है, सो हु विल बी हियर? जोकोविच इज नॉट हियर, शारापोवा इज हियर, so only possibility is Federer, ठीक है। only possibility is Federer. Now D has played with S on Thursday, Friday, Wednesday को Federer is playing with Sharapova. That means on Friday Nadal must be playing with Sharapova. Nadal must be playing with Sharapova, right? Now which player is left? Which player is left? So FN is done, FS is done, DS is done, NS is done, right? So D का 2 पेयर बच रहा है। So Nadal will come here, right? Nadal will come here because Nadal does not practice on Wednesday and Saturday. So DN will be here, and so DN, DS, DF is the only one which is left. So DF will be here, right? So I think our table is complete. कौन किस दिन practice कर रहा है? Now we only have to find out as for what time they are practicing, right? For what time they are practicing. Any doubts till here, guys? Any doubts in this? On Monday, F and N are practicing. On Tuesday, D and N are practicing. On Wednesday, F and S are practicing. Thursday, D and S practicing. N, S practicing here, and D
F practicing here. Okay. FS कैसे आया था? FS इसलिए आया था क्योंकि नडाल कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन वेंसडे. If Nadal cannot practice on Wednesday, that means only person left is Federer, and that is why F is here. ठीक है. सो आई होप मंडे से लेकर के सैटरडे का अपना मालूम पड़ गया कि कौन किस दिन खेलने वाला है. अभी हम लोग देखते हैं कि टाइम. ठीक है. अभी टाइम देखते हैं. टाइम के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया है कि ऑल द नंबर्स आर नेचुरल नंबर लेस देन 10. ठीक है. जिस दिन नडाल प्रैक्टिस कर रहा है ऑल दोज नंबर्स आर एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 3. दैट मीन्स 3, 6 एंड 9 आर दी 3 पॉसिबल नंबर्स. ठीक है. 369 का पॉसिबिलिटी है. The number of hours for which Federer practices on any day is an odd prime number. ठीक है. Odd prime number less than 10 कौन कौन से हैं? Odd prime number less than 10 is 3, 5 and 7. 3, 5 and 7. 3 is already counted. 3 is already counted. That means अभी तक हमारे पास 3 तो 5 यूनिक नंबर हो चुके हैं. 5 यूनिक नंबर्स हो चुके हैं. राइट. अभी आगे देखते हैं. The distinct values of the number of hours for which different players practice during contains two odd perfect squares. ठीक है. 2 odd perfect squares less than 10 are 1 and 9 only. Odd perfect squares यही है. These are the only 2 odd perfect squares less than 10. That means the sixth number is 1. So we have all the numbers 1, 3, 5, 6, 7 and 9. Correct. So these are the 6 numbers. ठीक है. तो अपना सारा नंबर आ गया. The sum of the hours for which practice is done on Friday and Saturday is one more than the number of hours for which practice is done on Tuesday and Wednesday. ठीक है. तो Tuesday and Wednesday का let's say if the sum is X, तो Friday and Saturday का sum कितना हो जाएगा? X plus 1. Yes. X plus 1. अभी देखो नडाल इज हियर ऑल्सो. ठीक है. नडाल दोनों जगह पे है. ठीक है. नडाल दोनों जगह पे है. तो इसका मतलब या तो यहाँ पे 369 में से कुछ आएगा और यहाँ पे उससे एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा. ठीक है. 369 आएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आएगा. नडाल इज प्लेइंग हियर ऑल्सो. ठीक है. ठीक है. करेक्ट. सो फेडरर के लिए दिया हुआ है इट इज एन ऑड प्राइम नंबर. ठीक है. सो 357 था और नडाल का 369 था. दैट मीन्स ओनली कॉमन बिटवीन देम इज 3. दैट मीन्स यहाँ पे वी कैन इजिली से दैट दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर 3 आवर्स. करेक्ट. दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर 3 आवर्स. दैट मीन्स 69 का पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 69 का पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 69 का पॉसिबिलिटी यहाँ पे. राइट. 69. तो क्या क्या यहाँ पे आ सकते हैं? व्हाट आर द नंबर्स विच इज लेफ्ट? ठीक है. 6, 7, 9, 5. यहाँ पे भी वही सारे नंबर हैं 6, 7, 9, 5. ठीक है. वी नो दैट द सम हियर इज 1 लेस देन हियर. सम हियर इज 1 लेस देन हियर. So here if you see 6, 7 sum is 13, 9, 5 sum is 14. Right. 6, 7 sum is this and 9, 5 sum is 14. So this is actually satisfying our condition. That means DN वाले में they will be playing for 6, they will be playing for 7, NS में 9 and DF में 5. Right. 3, 6, 7, 9, 5. Only 1 is left. So 1 is here. I hope this is clear. Any doubts here? Any doubts? अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो बताओ. I think we are done with this set. ठीक है. I think we are done with this set. All the information that was required is with us. ठीक है. अभी जल्दी क्वेश्चन देख सकते हैं या फिर क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं. ठीक है. I think once this table is done, I think you guys can go for the questions. ठीक है. स्किप करते हैं क्वेश्चन को. सर डेज एंड नेम वाले पे हाउ टू अराइव एट बेटर मतलब
ठीक है, आई होप देयर इज नो क्वेश्चन हियर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगले वाले सेट पे चलते हैं। ठीक है, फिक्स करने पे, हाँ तो फिक्स करने पे यू हैव टू सी विच ऑल कंडीशंस आर कंबाइनिंग एंड उसको यूज करके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे पहले एफ एंड एन को फिक्स कर दिया, देन वी न्यू के 3 दिन डी को खेलना ही खेलना है, तो देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, तो उस हिसाब से करना है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू द कंडीशंस व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कम है, ट्राई टू स्टार्ट विद दैट, ट्राई टू स्टार्ट विद दैट। उसके बाद तो इसमें सारे पूरा नेम लिखने का जरूरत थोड़ी ना, डी एफ, यू कैन यूज द इनिशियल्स, यहाँ पे तो सबके इनिशियल्स डिफरेंट है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द सेकंड सेट। सो दिस इज बेस्ड ऑन सिलेक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग सेट, वेरी इंटरेस्टिंग सेट। ठीक है, सो एक बार जल्दी से इसको पढ़ो, एक बार जल्दी से पढ़ो, आई डोंट थिंक इसको तो 2 मिनट भी लगेगा, 1 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट में पढ़ो इसको। ठीक है, एंड टेल मी इफ यू हैव सॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस अर्लियर, और अगर पहले बनाया है तो इट इज इवन बेटर फॉर यू। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत जल्दी समझ में आएगा, नहीं बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग अभी डिस्कस करने ही वाले हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। Yes, yes, A1 through A11, sorry, so there are 11 players, A1 through A11। ठीक है, तो बन जाएगा, इजी है, मॉडरेट है, क्या कहते हैं? नीदर नॉर मतलब ले भी सकते हैं, नहीं भी, राइट? अच्छा, if you are talking about this condition, it says that if A4 is selected, then neither A, अरे यार इसमें I think I think there is something which is left here. If A4 is selected, 2 players are not selected, I think यहाँ पे कुछ किसी का तो information missing है, I think there is some information missing here। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी चेक। ठीक है, लेट मी चेक। ठीक है, तब तक ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ठीक है, बिकॉज दिस नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सेट, एक बार जल्दी से पढ़ो, एक बार मैं देख लेता हूँ कि कौन है वहाँ पे जो मिसिंग है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। ठीक है, ऑलराइट, सो इफ A4 is selected then neither A9 nor A10 can be selected। ठीक है, तो अगर A4 सेलेक्ट हो रहा है तो ये लोग नहीं सेलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और लेट्स से अगर A9 सेलेक्ट हो रहा है, दैट मींस A4 मस्ट नॉट हैव बीन सेलेक्टेड, राइट? ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो a team of 5 members has to be selected among 11 players, A1 through A11, among them A2, A3, A4, A5 are the only senior players and at least one of them must be selected। ठीक है, तो 4 सीनियर प्लेयर हैं, there are 4 senior players, A2, A3, A4
एंड A5, ठीक है. सो दीज आर द सीनियर प्लेयर्स, एंड इसके अलावा ऑल द रिमेनिंग आर नॉन सीनियर, सो जूनियर प्लेयर्स, ठीक है. तो जो भी है रिमेनिंग आर 1 2, तो 1 2 तो हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 7 8 9 10 एंड 11, राइट. So these are the 11 pairs. These are the 11 pairs. ठीक है. अभी अपने को देखना है कि कौन सेलेक्ट हो रहा है, कौन सेलेक्ट नहीं. ठीक है. अभी it says that if A1 is selected, then A11 should be selected. तो A1 जो है हमेशा A11 के साथ जाएगा, but this is vice versa is not true. ठीक है. तो A1 जब भी सेलेक्ट होगा A11 भी सेलेक्ट होगा, बट A11 सेलेक्ट होगा तो जरूरी नहीं है कि A1 भी सेलेक्ट होगा. ठीक है. सो similarly, if A4 is selected, then neither A9 nor A10 can be selected. ठीक है. तो अगर let's say A4 हुआ तो ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे. अगर A9 हो जाता है, that means you can reject A4. If let's say A10 is selected, you can reject A4. ठीक है. If A7 is selected, similarly A8 and A6 cannot be selected. ठीक है. तो अभी जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 जो था, if A4 is the only senior player selected, then who among the following cannot be selected? A4 is the only senior player who is selected, so he is selected. All the remaining are not selected. All the remaining are not selected. If A4 is selected, neither A9 nor A10 has to be selected. So A9 भी रिजेक्ट हो गया, A10 भी रिजेक्ट हो गया. ठीक है. अभी if you see how many options are there, 1 2 3 4 5. ठीक है. 5 में से 4 अपने को सेलेक्ट करना है, राइट. 5 में से 4 अपने को सेलेक्ट करना है. ठीक है. 5 में से 4 सेलेक्ट करना है अपने को. हाँ सॉरी सॉरी, ये 9 या 10 रिजेक्ट हुआ है. A11 नहीं रिजेक्ट हुआ. ठीक है. A11 नहीं हुआ है रिजेक्ट, A10 रिजेक्ट हुआ है. ठीक है. सो स्टिल वी हैव 5 लेफ्ट. ठीक है. एंड वी हैव टू सेलेक्ट 4 आउट ऑफ 5. ठीक है. अभी यू सी वन कंडीशन दैट इफ A1 इज सेलेक्टेड, अगर A1 सेलेक्ट होता है तो A11 भी सेलेक्ट होगा. ठीक है. सो देयर इज वन केस वेर इन A1 इज सेलेक्टेड एंड देयर इज वन केस वेर इन A1 विल नॉट बी सेलेक्टेड. करेक्ट. दीज आर द टू केसेस. तो जब A1 सेलेक्ट हो रहा है तो A11 सेलेक्ट हो रहा है. जब A1 सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, then you'll be left with only 4 players. That means A11 will get selected, right? So A11 has to be selected, right? Has to be selected in both the cases. ठीक है. और अभी अपने को क्या पूछा था, कौन नहीं हो रहा है सेलेक्ट. अच्छा ठीक है, हम लोग कुछ और ही सॉल्व कर रहे हैं. A4 is the only senior player, then who among the following cannot be selected? A1, A10, A7, A6. ठीक है. तो इसमें हमने देख लिया A10 cannot be selected. ठीक है. ये तो क्लियर था फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है. तो A10 was clear. ठीक है. Now if exactly 4 non-senior players are selected, if चाहिए हो गया, if exactly 4 non-senior players are selected, ठीक है, 4 non-senior player को सेलेक्ट करना है. तो इसके नीचे सारे non-senior players हैं. ठीक है. सारे non-senior players हैं. And A7 is one of them. A7 is already selected. Then who among the following must be selected? Who among the following must be selected? अगर 4 नॉन सीनियर है, मतलब सीनियर में से एक होगा कोई, सीनियर में से कोई भी एक होगा. दैट वी टोल्ड. अगेन द सेम थिंग दैट वी डिस्कस्ड. यहाँ पे वही कंडीशन है. ठीक है. दैट लेट्स से देयर कुड बी 2 केसेस वेयर इन A1 इज सेलेक्टेड और A1 इज नॉट सेलेक्टेड. ठीक है. जब A1 सेलेक्ट होगा तो A11 सेलेक्ट होगा. When A1 is not selected, then also A1 will be selected. ठीक है. तो यहाँ पे the reason why we can say this is कि जब A7 सेलेक्ट होता है, जब A7 सेलेक्ट होता है तो 8 और 6 रिजेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. 8 और 6 रिजेक्ट हो जाते हैं. अभी बचे कितने हैं? ठीक है. 1 2 3 4 में से 3 सेलेक्ट करना है, राइट. 4 में से 3 सेलेक्ट करना है अपने को. ठीक है. 4 में से 3 सेलेक्ट करना है. तो या तो A1 होगा तो A11 भी हो जाएगा. A1 नहीं हुआ तो you will be left with 3 only. तो in any case you see A11 is going to get selected. ठीक है. as per this
A11 is going to be selected. Clear है? Is this point clear? A2 होगा ना? A2, अरे सीनियर प्लेयर्स में तो देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन. सीनियर प्लेयर्स में तो देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन. तो वी कांट से A2 होगा कि A3 होगा या A4 होगा या क्या होगा. ठीक है. सीनियर प्लेयर में तो वी डोंट हैव. Right. Am I audible, guys? Am I audible? Yes, no in the chat. Okay, awesome. ठीक है. तो there was electricity cut. ठीक है. तो ये थोड़ा सा ग्लिच आ गया, कोई बात नहीं. हम लोग वापस से वहीं से शुरू करते हैं. ठीक है. वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. So I hope question 1, question 2 is clear. I hope question 1 and question 2 is clear. अच्छा, question 1 में people are saying in first question A7 can also not be selected now. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में ना तो कुछ तो सॉल्व करने जैसा था ही नहीं. ठीक है. इफ इट इज already said that if A4 is the only senior player selected, who among the following cannot be selected. यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है. ठीक है. कि जब A4 होगा तो A10 नहीं हो सकता है. ठीक है. A4 होगा, A10 नहीं हो सकता है. तो in any case, ठीक है, A10 cannot be selected. ठीक है. A6, 7, बाकी के जो ऑप्शंस हैं A1, 7, 6, they are still possible. Why A7 is not possible? Why A7 is not possible? ठीक है. If let's say A4 is selected, A6, 7, 8 is selected. So what is the challenge? What is the challenge? ठीक है. 6, 7, 8 के साथ 11 selected. ठीक है. ठीक है. तो एक बार वापस से क्वेश्चन को देख लेते हैं. इफ A4 is the only senior player selected, then who among the following cannot be selected? A10 तो क्लियर रिजेक्ट है. A7 पे लेट्स चेक कर लेते हैं A7 का क्या केस है. इफ A7 is selected, ठीक है, वापस से पहले वाले सवाल पे आते हैं. ठीक है. A4 is the only senior player who is selected, तो A4 सेलेक्ट हो गया है, बाकी लोग रिजेक्ट हो गए. ठीक है. सिंस A4 is selected, A9 और A10 जो है वो पहले से ही रिजेक्ट हो गए. ठीक है. So this is A9, 10, 11. So 9 is rejected and 10 is rejected. ठीक है. If 7 is selected, 8 and 6 cannot
कैन नॉट बी सेलेक्टेड, राइट। हाँ, तो अगर 7 सेलेक्ट होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो वी विल बी लेफ्ट विथ 1, 2 and 3 players, correct, correct. So only 4 players can be selected, right? Only 4 players can be selected if A7 is selected. So there are two options which are correct. So I think यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर ई भी होना चाहिए था, none of these या फिर cannot be determined, ठीक है, none of these or cannot be determined, ठीक है, both are possible, ठीक है। But let's say if these options would not have been given, यहाँ तो I think I don't see कि क्यों दिया है क्वेश्चन, ठीक है, दो एक कंफ्यूज करने के लिए 7, 8 10 दोनों दे दिया है, ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट इंस्टिंक्ट, आई डोंट सी द फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही A4 दिखा सीधा A10 टिक हो जाएगा, बिकॉज A10 इज ऑब्वियसली करेक्ट एंड यू जनरली डोंट एक्सपेक्ट टू ऑप्शंस टू बी करेक्ट इन एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई डिडंट गो फॉर A7, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे दोनों है, तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑप्शंस, ठीक है, समथिंग रॉन्ग विद द ऑप्शंस, दिस शुड हैव बीन समथिंग एल्स, ठीक है। चलो, let's move to the next question. If three senior players are selected, in how many ways can a team with neither A4 nor A7 can be selected? So three senior players, A1 2 3 4, अच्छा नहीं, सारे सीनियर इधर नहीं है, 2 3 4 5 यहाँ पर है, 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें से three senior players are to be selected with neither A4 nor A7. So A4 is not getting selected. A4 is not getting selected. That means 2, 3, and 5 are getting selected. 2, 3, and 5 are getting selected. ठीक है। तो अभी अभी अपने को और दो लोग को सेलेक्ट करना है, अभी अपने को और दो लोग को सेलेक्ट करना है, यस, अभी अपने को दो लोगों को सेलेक्ट करना है। तो देन देयर कुड बी टू केसेस, अगर A1 सेलेक्ट हो जाता है तो उसके साथ A11 वैसे ही आ जाएगा, तो दो लोग ऐसे ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो अपना 5 बन गया, अपना 5 बन गया। सो दिस इज वन केस, इसमें बस एक ही पॉसिबिलिटी है, व्हेन A1 इज सेलेक्टेड, A11 सेलेक्टेड एंड बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। देन देयर विल बी अदर केस वेयर इन 2, 3 and 5 आर सेलेक्टेड एंड वन इज नॉट सेलेक्टेड। if one is not selected if one is not selected and it also says that A7 is also not selected, ठीक है, A7 is also not selected, A7 अगर नहीं है, दैट मीन्स A8 A6 दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं, अभी अभी दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं, दैट मीन्स ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, 9 भी पॉसिबल है, 10 भी पॉसिबल, 11 भी पॉसिबल है, राइट। ऑल दी ऑप्शंस आर पॉसिबल नाउ। तो 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है, 5 में से अपने को सेलेक्ट करना है 2, दैट मीन्स 5C2, 5C2, 5C2 is 10 ways, 10 ways here and 1 way here, that means total is 11 ways, total is 11 ways. I hope this is clear. I hope this is clear. सही समझ में आया सबको, कोई डाउट, कोई चैलेंज? ऑलराइट, सो ये हो गया है। लेट्स नाउ मूव टू द लास्ट सेट फॉर टुडे, लास्ट सेट फॉर टुडे। एंड एज वी डिस्कस कि खाली लॉन टेनिस पे और टेनिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, आते हैं वापस से क्रिकेट के ऊपर, ठीक है। एंड क्रिकेट पे भी बहुत ही, नाउ टेल मी, गो थ्रू द नेम्स एंड टेल मी विच व्हाट गेम कम्स टू योर माइंड, क्या गेम का नाम याद आ रहा है, इसको देख ले, ठीक है। एक बार क्वेश्चन का बस नेम्स को पढ़ो और बताओ कि कौन सा गेम याद आ रहा है, इसको देख। क्रिकेट 2007, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे धोनी है ना यार, डी धनियर, हु इज दैट? डी धनियर इज धोनी, ठीक है। तो डी धनियर, एस गुंगली, आर द्रविड़, वी सेवे, एस तेंदुलकर, ठीक है। तो ये क्रिकेट 2007, ठीक है। गौतम गंभीर, जहीर काम, बहुत लोग थे, बट सिंस देर आर ओनली 5 प्लेयर्स तो आई हैड टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, ठीक है। बैकग्राउंड में गाना भी बदल, ठीक है। तो अभी इसको एक बार जल्दी से पढ़ो, वो जल्दी से इसको पढ़ो, रीड दिस क्वेश्चन फॉर, इट्स जस्ट टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लो, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसको डिस्कस करना, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। हाँ, खेल ये लोग जुआ रहे हैं लेकिन प्लेयर्स क्रिकेट के हैं, ठीक है।
आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया है। आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक है, सबने पढ़ लिया क्वेश्चन, सेट पढ़ लिया। यस। So, so this is puzzle, or you can say a miscellaneous kind of a set. तो इसमें इसमें क्या है कि there is no fixed way to solve this। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो वही इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इट्स वेरी नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सेट, आई विल से। ठीक है, बट ऑब्वियसली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, किस तरह से पॉइंट स्कोरिंग किस तरह से हो रहा है, एंड उसके हिसाब से हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट looking at the question. So, pehla, S. Gungli, R. Dravye, V. Sevai, S. Tendehar, and D. Dhanier played a game of dice. The die used for the game was special and had only two numbers, which is 1 or 10. ठीक है, 1 और 10 दो ही नंबर हैं डाइस के ऊपर, रिटन ऑन द 6 फेसेस ऑफ द डाई। ठीक है, तो 110 ही रहेगा हर जगह। Each player rolled the dice 6 times. If a player got the same number, either 1 or 10, or 3 consecutive rolls of the die, he got 2 points। ठीक है, तो अगर 1 1 1 आ गया तो उसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, या फिर 10 10 10 आ गया, ठीक है, तो उसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अदरवाइज नो पॉइंट्स वर अवॉर्डेड टू द प्लेयर्स। It was observed that each of the 5 players got 2 points each in the game। तो सबको दो दो पॉइंट ही मिले। ठीक है, सबको दो दो पॉइंट ही मिले in the game, while one person got the points on the fourth, fifth and sixth roll of the die। ठीक है, तो किसी को फोर्थ पे मिला है, किसी को फिफ्थ पे मिला है, किसी को सिक्स पे मिला है। ठीक है, मिनिमम कितने पे मिल सकता है, मिनिमम कितने रोल पे मिल सकता है पॉइंट्स? मिनिमम मिनिमम 3 लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मिनिमम 3 ही लगेगा। ठीक है, तो मिनिमम 3 और 4 5 6 पे एक एक लोगों को मिल रहा है, दैट मीन्स 3 पे 2 लोगों को मिल रहा होगा। टोटल 5 पीपल आर देयर। टोटल 5 पीपल आर देयर। One person got the point on fourth roll of the die. One person got the point on fifth roll of a die. One person got the roll on the sixth roll of the die. That means 2 players got the points on third roll. Right? There are 5 people. तो 2 लोग हैं जिनको कि थर्ड रोल पे ही मिल गया है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी कि कौन है वो 3 लोग, सॉरी कौन है वो 2 लोग जिसको थर्ड रोल पे ही मिल गया है वो पॉइंट्स। ठीक है, तो कैन गांगुली बी दैट पर्सन? कैन गांगुली बी दैट पर्सन? कैन गांगुली बी दैट पर्सन? नो, नो, बिकॉज यहाँ पे 3 चाहिए होंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर गांगुली टू स्कोर एट द थर्ड रोल ऑफ द डाई। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाट अबाउट राहुल द्रविड़? राहुल तो नहीं, आर द्रविड़। ठीक है, थर्ड रो कैसे किया? ठीक है, तो इसमें ये अगर इफ यू रीड दिस स्टेटमेंट क्लियरली, it was observed that each of the player got 2 points each in the game, while one person each got 2 points on fourth, fifth and sixth roll of the die। ठीक है, 6 पे मिला है, टोटल 5 है, दैट मीन्स 2 लोगों को 3 पे मिला होगा। इस तरह से हमने ये रिड्यूस किया कि 2 लोग होंगे जिसको थर्ड पे मिल गया होगा। क्लियर? ठीक है, अभी देखो गांगुली रूल आउट हो गया है, गांगुली को थर्ड पे नहीं मिला होगा। व्हाट अबाउट राहुल द्रविड़? राहुल द्रविड़ के बारे में क्या बोल सकते हैं? कैन राहुल द्रविड़ स्कोर एट द थर्ड थर्ड रोल? मे बी, देखते हैं। फॉर राहुल द्रविड़ टू स्कोर एट द थर्ड, ही हैज टू स्कोर 1 and 1 here, 1 and 1 here, that's the only possibility। ठीक है, but it is also said that it was also observed that no player got the same number on 4 or more consecutive rolls of the die।
पॉसिबल, अगर 1 1 यहाँ आएगा तो 5 बार कंसेक्यूटिव 1 हो जाएगा. सो दिस इज रूल्ड आउट. ठीक है, सो दिस राहुल द्रविड़ इज ऑल्सो रूल्ड आउट. ठीक है. व्हाट अबाउट वीरेंद्र सहवाग? ठीक है, वीरेंद्र सहवाग ये कर सकता है, दिस इज पॉसिबल. 10 10 यहाँ ले आएगा एंड ही कैन स्कोर इन द थर्ड रोल ऑफ द डाई. तो दिस इज पॉसिबल. ठीक है. अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं. व्हाट अबाउट एस टेंदेहर? ठीक है. व्हाट अबाउट हिम? व्हाट अबाउट हिम? Can he score at the third roll of the die? Can he score on the third roll of the die? If he has to score on third roll of the die, that means यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा. 4 बार 10 नहीं आ सकता है. There could not be 4 10s. That means he'll have to score 1 here. Then he'll have to get 1 here. Yes. अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो 3 कंसेक्यूटिव करने पे 2 पॉइंट और वापस से 3 कंसेक्यूटिव करने पे 2 पॉइंट, टोटल 4 पॉइंट हो जाएंगे. बट वी नो दैट ही स्कोर्ड ओनली 2 पॉइंट्स. scored only 2 points. इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है. सो देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज फॉर these players to score at the third roll of the die, which is with वीरेंद्र सहवाग and डी धनेयर. ठीक है, तो वीरेंद्र सहवाग और डी धनेयर ही हैं जो कि थर्ड रोल ऑफ द डाई पे स्कोर कर लेंगे. थर्ड रोल ऑफ द डाई हम लोग को पता है स्कोर करने वाले हैं, सो दैट मीन्स 10 10 हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी नो दैट यहाँ पे वो 1 नहीं लाएगा बिकॉज अगेन एक स्कोर हो जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी 10 हो जाएगा उसका. यस. व्हाट अबाउट डी धनियर? डी धनियर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 होगा. तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा. यस. तो डी धनियर और वीरेंद्र सहवाग हमने क्लियरली फाइंड आउट कर लिया. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? एनी क्वेश्चंस? तो अपना ये वाला तो क्लियर हो गया है ना, अपना ये वाला क्लियर हो गया. अभी देखते हैं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पे. फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पे कौन कौन स्कोर करने वाले हैं. ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पे कौन कौन स्कोर करने वाले हैं. तो इफ यू लुक एट एस गुंगली, एस गुंगली को अगर देखोगे तो अगर लेट्स से 10 10 यहाँ ले आता है तो ही कैन स्कोर ऑन द फोर्थ रोल ऑफ द डाई. यस, ही कैन स्कोर ऑन द फोर्थ रोल ऑफ द डाई. ठीक है. बट लेट्स से इफ ही स्कोर्स 1 हियर, ठीक है, 1 लाता है तो सिक्स वाले पे भी कर सकता है, सिक्स वाले पे भी कर सकता है. तो 4 and 6 बोथ आर पॉसिबल फॉर एस गुंगली. यस, 4 and 6 बोथ आर पॉसिबल फॉर एस गुंगली. ठीक है. लेट्स नाउ लुक एट आर द्रविड़. आर द्रविड़ का देखते हैं क्या कर रहा है. इसका 4 5 6 पे देखना है, राइट? तो ही कैन स्कोर 1 हियर, सो 6 इज पॉसिबल फॉर हिम. 6 इज पॉसिबल फॉर हिम. ठीक है. Why not 5? 5 is also possible for him. Let's say if he scores 1 here, तो फिफ्थ पे इसको मिल जाएगा, फिफ्थ पे इसको मिल जाएगा. ठीक है, तो 5 is also possible. ठीक है. फोर्थ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फोर्थ होगा तो फिर 4 कंसेक्यूटिव वंस हो जाएंगे. तो 5 and 6 आर पॉसिबल फॉर आर द्रविड़. करेक्ट. 5 and 6 आर पॉसिबल फॉर आर द्रविड़. 4 इज नॉट पॉसिबल. 5 and 6 आर पॉसिबल. ठीक है. इसके लिए 4 6 पॉसिबल है, इसके लिए 5 6 पॉसिबल है. एस तेंदुलकर का देखते हैं, एस तेंदुलकर का देखते हैं. ठीक है. तो एस तेंदुलकर के लिए if he wants to score at the fourth position, if he wants to score at the fourth position, तो यहाँ पे let's say 10 10 10 10 होगा तो there will be 4 consecutive 10s. So this is not possible, not possible. इसका मतलब अगर 1 1 1 हो तो again there will be 2 more ones. तो ये भी नहीं पॉसिबल है इसके लिए, ये भी नहीं है पॉसिबल. फोर्थ इज नॉट पॉसिबल, फोर्थ इज नॉट पॉसिबल, राइट? इज फोर्थ पॉसिबल? नो. इज फिफ्थ पॉसिबल? फिफ्थ पे कर सकता है क्या? फिफ्थ पे करने के लिए, फिफ्थ पे करने के लिए he has to score 1 1 here, 1 is already here, 1 is already here, so again consecutive 4. So 4 and 5 both are not possible for him to score. ठीक है, 4 and 5 are not possible, so only possibility is 6. ओनली पॉसिबिलिटी इज 6. तो ये सिक्स पे स्कोर करेगा, 6 जा चुका है, तो आर द्रविड़ फिफ्थ पे स्कोर करेगा एंड ये फोर्थ पे स्कोर करेगा. आई होप दिस इज क्लियर. इज दिस क्लियर गाइस? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स हियर? डाउट है तो बताओ. अच्छा,
Ronick is saying why 2 in 3 once more briefly. अच्छा ये तो यार बहुत पहले हमने डिस्कस किया था। अभी अभी ठीक है, उस पे आते हैं। पहले इसका बताओ, इस एस तेंदुलकर का क्लियर है कि 6 पे स्कोर करेगा, वो 6 रोल पे ही क्लियर करेगा, ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें कि वाई एस तेंदुलकर इज स्कोरिंग ऑन द 6th रोल ऑफ द डाई? इफ नॉट, इफ अगर इसका 6 क्लियर है तो इसका 5 भी क्लियर होगा, ही विल बी स्कोरिंग एट द 5th पोजीशन, एट द 5th रोल ऑफ द डाई। यस, इफ दिस इज 5th, दिस इज 6th, तो इसका हो जाएगा 4th। दिस इज क्लियर, ठीक है। अभी रॉनिक का डाउट है कि ये 3rd पोजीशन पे 2 लोग कैसे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 3rd पोजीशन पे 2 लोग कैसे स्कोर कर रहे हैं। तो यू सी, इट रिक्वायर्स यू मिनिमम 3 रोल टू स्कोर अ पॉइंट, राइट? इट रिक्वायर्स मिनिमम 3 रोल्स टू स्कोर अ पॉइंट, करेक्ट? क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव होंगे तभी जाकर के पॉइंट मिलेगा, तो मिनिमम 3 तो होने ही होने हैं। अभी इस क्वेश्चन में लिखा है कि 4th 5th 6th पे देयर इज ओनली वन पर्सन, देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज गेटिंग पॉइंट्स। तो 4th 5th 6th पे एक एक लोग ही हैं जिनको पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल आर 5, 3 people we have determined, so there are 2 left, 2 left, and that is why 2 are scoring at the 3rd roll of the die, ठीक है। अभी हम लोगों को सब लोगों का सब इंफॉर्मेशन मालूम पड़ गया है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एस कुंगली 4th पे कर रहा है, मतलब ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यस, द्रविड जो है वो 5th पे कर रहा है, दैट मींस दिस विल बी 1, दिस विल बी 10, दिस विल बी 10, राइट? एस तेंदुलकर 6th पे कर रहा है, दैट मींस दिस इज 1, दिस विल बी 10, दिस विल बी 1। So now our table is complete. We can go for the questions. D Dhanier got the points on the die roll number 3. Die roll number 3. What is the sum of the numbers on the 3rd die roll by all the players put together? So batao, just have to sum it up. You just have to sum it up. 32. The answer is 32. V7 got the points on the same die roll number as D Dhanier. Right? D Dhanier. दोनों साथ में स्कोर कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गॉट द पॉइंट्स ऑन 4th डाई रोल? 4th का पे कौन गया है? एस कुंगली, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस सेट इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो नेम्स इंटरेस्टिंग है, वो मैंने नहीं बनाया है, वो क्रिकेट वालों ने बनाया ये, ठीक है। तो with this I think we have come to the end of today's DILR Enzo session, ठीक है। we'll again have a similar kind of a session for DILR in the coming weeks, ठीक है। वहां पे हम लोग और थोड़ा वैरायटी डिस्कस करेंगे। Today we discussed questions on rules and networks, games and tournaments, ठीक है, scheduling, arrangements, miscellaneous, then some question on DI as well, like Venn diagram, binary logic, ठीक है। सो आगे आगे वाले क्लासेस में हम लोग और थोड़ा डिफरेंट वैरायटी ट्राई करेंगे डिस्कस करने का, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ क्लास, ठीक है। सी यू ऑल, ठीक है। एंड ऑब्वियसली डोंट लूज फेथ, ठीक है। मॉक में खराब नंबर आ रहे हैं, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो आई थिंक यू शुड नॉट लूज योर फेथ, बिकॉज द विनर इज डिसाइडेड ओनली आफ्टर द कर्टेन, ठीक है। तो जस्ट लाइक डी धनियर, ठीक है, कीप इन द गेम, इन द गेम विल बी एबल टू, ठीक है। जैसे डी धनियर